share my screen with you all. Let me know when it is visible. It's visible. You know. Okay. Visible. Okay, thanks for the Your confirmation. voice is too low. Am I the only one or anybody else? Let me check my mic. Actually, Yeah, it there is an is. issue with my mic. Yeah, it Is was it fine initially. Yeah, it is fine now. Okay, okay. Let me know when there is any issue, like Pooja said. Okay, if there is an issue with the voice and all, it's, I mean, the some disturbance in the voice while speaking, you can let me know. Until unless you tell me, then how will I come to know that there is an issue? Okay, guys. So we will start the okay. Hello, आवाज आ रही है? In 2003, yes, you are audible. Am I audible? Is it loud and clear, Pooja? And others, Yeah, if you yeah, can share it your is clear concerns. now. Okay. So, the basically ServiceNow came into the picture. It is founded by Fred Ludy in 2003. You can see in the PPT also. And he has launched his ITSM application in 2005. And later on, it grows and expands from 2006 to 2011. Gained the attraction with the ITSM application 2006 and rebranded his name from GlideSoft to INC to ServiceNow. Earlier it was GlideSoft INC. What it was? Can anyone repeat it? Glides of INC. Yes, yes. I want everyone to be with me on the same page, so it will be easy to understand. I'm with someone. There are some people with me along with learning with me. Okay. So I want everyone to speak up, because if you are just silent, keep not speaking, so that समझ में भी नहीं आता अगर हम if somebody is talking with you, if you are not interacting with him ना, तो समझ चीजें भी नहीं समझ में आती है. So interact with me, yes or no? Okay. So in 2009, you can see in the slide, third point, expanded by beyond the ITSM. It was not stick to the ITSM only. What is ITSM? Can someone please explain? From last 1 week we are discussing on ITSM part, ITSM module. What is ITSM? In short, can someone please explain it? What is ITSM? Shahrukh, Tanmay, Aya, and what are the modules come under the ITSM part? Anyone else? Fatima? रिपीट कर सकते हो क्या सर? थोड़ा मैं अभी ज्वाइन होगा. ITS. अच्छा. हाँ, अभी start किए हैं. I'll take you to the first slide, first page of the slideshow. We are discussing. Okay. तो ServiceNow 2003 में लॉन्च हुआ या फाउंडेड बाय फ्रेड लूडी. फ्रेड लूडी ने ServiceNow का इजाद किया एंड उन्होंने 2005 में ITSM एप्लीकेशन को लॉन्च किया. उसके बाद में ITSM एप्लीकेशन का अट्रैक्शन बढ़ा मार्केट में. फिर उन्होंने रिब्रांडिंग की अपने नाम की GlideSoft INC से ServiceNow में. ServiceNow का इजाद ऐसे हुआ कि पहले GlideSoft था, फिर ServiceNow हुआ, फिर expanded beyond the ITSM के भी आगे निकल गया. ITSM, what is ITSM? I ask one question to everyone. ITSM क्या है? IT सर्विस मैनेजमेंट, राइट? तो ITSM में कौन से मॉड्यूल्स आते हैं? वी लास्ट 1 वीक आई थिंक. कौन से मॉड्यूल आते हैं? एनीवन? Incident, change, करेक्ट, problem, करेक्ट. एंड टिकटिंग. request. I want to speak everyone at least one module. और टिकटिंग. It's a ticketing. ITSM है ना, टिकटिंग प्लेटफॉर्म है. कौन से मॉड्यूल आते हैं? जैसे कि अभी बताया, इंसिडेंट है, चेंज है, प्रॉब्लम है. व्हाट आर अदर्स? Asset. एसेट मैनेजमेंट, Knowledge management. रिक्वेस्ट. इस पर हमने बहुत बात की. संजीत ने बहुत अच्छे एग्जांपल्स दिए. अशफाक सर ने भी बहुत अच्छे एग्जांपल्स दिए सर्विस रिक्वेस्ट के बारे में. So these are modules come under the ITSM application. अभी ServiceNow it's not stick to the ITSM module. It has expanded beyond ITSM. अभी आगे चला गया.
If you see the in 2011 they have reached 100 million in annual revenue. Kabhi 2011 mein. Okay, let's go ahead. Process. Just now we discussed these are the key components of ITSM process. Have a look once. How many are there? 8. 8. Can someone please tell me the names one by one? These we have all the covers, right? Knowledge management भी cover किया, incident भी cover हो गया, problem भी, change भी, configuration management और service SLM भी किया, service level management, release management, service desk management. These all the modules I believe we have covered, right? Yes or no? Yes. Yes, Deep sir. not, but लेकिन overview तो हमने इसके ऊपर में लगभग सारे modules के ऊपर में हमने किया है. I'll share the link with you guys for ITL. Okay, just go through that. This is again very essential when you are learning ServiceNow. So just go through that. I'll share the link on WhatsApp. Yeah, and this ITL covers all this ITSM processes. More correct. So I've spoken about basically incident, problem change, configuration, service level management, service desk, knowledge management. Only release management is still pending, but rest all. Overview way we have discussed all these modules, but in deep incident we have gone through in the deep level problem change. Yeah, incident. हाँ, Correct. so True. लगभग हमने सारे modules cover किए हैं. Whichever were not, I mean, we have the deep discussion. Later we will have the discussion on deep. Okay, तो हम practically भी what is incident management और क्या है एप्लीकेशन, उसका लाइफ साइकिल क्या है, प्रॉब्लम का लाइफ साइकिल क्या है, इन ऑल द अदर्स मॉड्यूल्स वी आर गोइंग टू हैव द डीप डिस्कशन. ठीक है, इन रियल टाइम एज वेल. कम लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. And from 2012 to 2014 went to Publicon and YSE under the ticker symbol now. And 2013 expanded platform to include service automation across enterprise departments. Okay, in 2004 list of world most innovative companies. If you observe from 2003 to 2000 till 2019 how fast it has grown. Okay, introduce the Now platform for custom application. We are going to have the real-time look on custom application in upcoming minutes. And in 2017 you can go through. Into 19 Bill McDermott took over as a CEO. I'll come to the last page of the slide. Okay, 2020, 21, 22, 23, and it still continued innovation in workflow automation and IT operations. Okay, and you can have this slide. I'll share this slide in our group and our G Drive link as well. You can go through with this as well. Okay, so as we seen how fast it grown today, what is the revenue of ServiceNow? ServiceNow, if you Google, you can see how fast it's grown. In 2021, almost 23% went to the 7.24 billion. In 2022, it increased by 23.82% and the revenue was 8.97. If you see today, 2004 March update, it is reached to the 9.47 billion. How fast it's growing. When application here. software grows, You know, Sanjit here, let me put it in another way. If you remember what happened in smartphones, right? So at one point, Nokia and BlackBerry were king.
Do you all remember that? Yes. Nokia was the king of smartphones, or BlackBerry was the king of smartphones for corporate and all of that. And all of a sudden ये दोनों ब्रांड्स एकदम साइड में हो गए और आईफोन आ गया, करेक्ट, या एंड्रॉइड आ गया। उसी Correct. तरह एट वन पॉइंट आईटीएसएम में द किंग और द बिगेस्ट प्लेयर वाज बीएमसी रेमेडी, एंड ऑल ऑफ अ सडन बीएमसी रेमेडी का नोकिया हो गया, बीएमसी रेमेडी का ब्लैकबेरी हो गया, एंड सर्विस नाउ स्टार्टेड ग्रोइंग। एंड आपके सामने है द वे सर्विस नाउ हैज ग्रोन। द रीजन दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस इज, जैसे मैंने पहले एक बार कभी बताया था कि मेरे टाइम में 1992 1993 में एक रॉकेट निकला था एसएपी, और मैं उस रॉकेट पे बैठा था, एंड आई हैड अ फिनोमिनल करियर। उस तरह ये अपॉर्चुनिटी 10-20 साल में एक बार आती है वापस, तो ये अपॉर्चुनिटी वापस आई है। सर्विस नाउ इज दैट रॉकेट। अभी इनिशियल है सर्विस नाउ का, ये बहुत बड़ा बनने वाला है। सो इफ यू आर ऑन दैट रॉकेट, यू आर गोइंग इनटू ऑर्बिट। दैट्स इट। करेक्ट। वेरी गुड एग्जांपल संजीत। जैसे कि भी संजीत सर ने बताया कि जब कोई कंपनी ग्रो करती है ना, तो कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ता है, तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है, डिमांड्स बढ़ती है उस एप्लीकेशन की। तो जब डिमांड बढ़ती है तो जॉब्स भी बहुत ज्यादा निकलते हैं। सर्विस, इफ यू सर्च ऑन लिंक्डइन और अनदर जॉब सीकिंग, आई मीन प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे नौकरी है और अदर भी मॉन्स्टर्स वगैरह है, इफ यू सर्च फॉर सर्विस नाउ यू विल गेट thousands of jobs. Every company, हर कंपनी में जिस प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट होती है, एटलीस्ट इन प्रोजेक्ट देयर माइट बी 4 to 5 डेवलपर्स। हर प्रोजेक्ट में a company has plenty of projects, like TCS has a thousands of ServiceNow projects. Wipro, Accenture have thousands of, you can say thousands of projects. Other company, every small company also using this ServiceNow application to manage their IT services. तो जब वो कोई कंपनी अगर इसको खरीदती है, so they need a team to work on their platform. Suppose if I give you example, Rise Up India is an institute, ठीक है। इन फ्यूचर आई बिलीव इट विल ग्रो। जब ये ग्रो होगी तो इनका स्टाफ भी बढ़ेगा, तो स्टाफ बढ़ेगा, थाउजेंड्स होंगे, 50,000 ऑफ एम्प्लॉय आर वर्किंग फॉर राइज अप इंडिया आईटी कंपनी। इट हैज ग्रोन टू द आईटी कंपनी होगी, अब थाउजेंड्स एम्प्लॉय है कंपनी में, तो थाउजेंड्स एम्प्लॉय का डेटा भी है, अभी कंपनी को मैनेज करना है, डेटा सारी चीजें डिटेल्स हैं, और इनके इश्यूज भी आएंगे, इनके सारी चीजें एसेट्स आएंगी, इनके सैलरी होगी, इनकी छुट्टियां होगी, ये हाउ विल दे मैनेज? अगर ये थाउजेंड्स ऑफ पीपल को अगर इश्यूज आते हैं, देख नशफाक एवरी टाइम कि मुझे ये इशू आ गया, मुझे ये प्रॉब्लम आ गया। अर्लियर आल्सो वी हैव डिस्कस व्हाट इज आईटीएसएम, आईटी सर्विस मैनेजमेंट। इन शॉर्ट आई विल टेल यू कि फिर ये सर्विस नाउ केम इनटू द पिक्चर कि आप हमारे पास मत आओ, सर्विस नाउ प्लेटफॉर्म हमने एक स्टार्ट किया है, उस पर जाओ, सर्विस पोर्टल है, वहां पर एक इंसिडेंट क्रिएट करो। वी हैव added few teams to work on your concern and queries कि वो इंसिडेंट पे काम करेंगे, you will get your answer, you will get your issue will be resolved। वहां आपको कुछ भी इशू है वहां पर आपको रिजॉल्व होगा। तो सर्विस नाउ कैसे मैनेज करता है ये सारी चीजें, तो हमें ये चीजें अभी देखनी है। तो मैं आपको सर्विस नाउ इंस्टेंस हमने कल देखा है, यूआई इंटरफेस का मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ कि उसका यूजर इंटरफेस कैसे दिखता है, ठीक है। मैं टेक यू टू द सर्विस नाउ, फर्स्ट लुक ऑफ सर्विस नाउ यू कैन से, अगर पहले किसी ने नहीं देखा है। रिट्राई, before showing you the look of ServiceNow user interface, I want to give you one example as I given earlier as well कि Rise Up company grow हो गई, अब उनको काम करना है। They have got one project, you know, support project from US to work on our project की एक business मिला उन्हें US से,
सपोर्ट के लिए. So how will they manage? अब एक सपोर्ट प्रोजेक्ट मिला है, कैसे मैनेज करती है टीम? इंटरनली आई टेल यू बिकॉज आई एम इनटू दिस डेवलपमेंट सर्विस नाउ फ्रॉम लास्ट 3 years, एज आई सेड इन माय. जब किसी कंपनी को एक प्रोजेक्ट मिलता है, जैसे कि सपोज राइजअप कंपनी को एक टी मोबाइल का प्रोजेक्ट मिला यूएस से, कि हमारे पास में हमारा एक प्लेटफॉर्म है सर्विस नाउ का, हमारे पास एम्प्लॉय है, 500 एम्प्लॉयज काम करते हैं एंड वी नीड सपोर्ट ऑन दैट प्लेटफॉर्म. जब वो बिजनेस मिला तो व्हाट राइजअप कंपनी विल डू, मैनेजमेंट बैठेगा और दे विल डिस्कस कि ये प्रोजेक्ट है, thousands ऑफ एम्प्लॉय हैं, दे विल कम अप विद देयर कंसर्न क्वेरीज एंड डिजाइनिंग डेवलपमेंट, everything will they all the thousands employee will come up, right? Yes or no? Yes. Okay. Yes. अगर कहीं नहीं समझ में आता, you can tell me in between. Okay, so I'll सर एक explain. डाउट है. हाँ, yes. जैसे AWS के अंदर हम इंस्टेंस जो होता है उसे पॉज कर सकते हैं या फिर शट डाउन कर सकते हैं, वैसे ही यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा? यहाँ पे वेट करना पड़ रहा है. और मैंने कल एक अब आपने जो वीडियो भेजा था Shut down यानी वो- क्या मतलब स्टॉप करते हैं क्या आप हाँ इंस्टेंस स्टॉप. हाँ AWS एक्चुअली है? हाँ हाँ. तो इसमें स्टॉप करने का जरूरत, where it gets shut down automatically. You can see here, yesterday I was using my PDI, but today it went to the sleep mode. I'm waking it up now. You can see here, waking up the instance. When you don't use it for a couple of hours, it will go to the sleep mode. Again, you have to wake it up, the instance. You can see here, it's waking up. Manually, you don't have to do that कि आपको किधर बटन है कि इसको sleep mode में डालें या फिर ऑफ करें. And you don't have to worry about it because it's everything. You don't have to do anything. It doesn't impact to your system and all. कि आपने अगर ऑन छोड़ा तो आपके सिस्टम पर इम्पैक्ट हो रहा है, स्लोनेस आ गया, राइट? AWS में हमें बिल पड़ता था अगर गलती से अगर चालू रह जाता था तो. इसमें वैसे कुछ नहीं है, आप इसको ऑन भी रख सकते हैं, आपको कोई चार्ज नहीं है. आई कैन तो इसमें ऐसे कोई फंक्शनैलिटी तो नहीं है कि इसको स्लीप मोड में अगर बाय डिफॉल्ट मैन्युअली डाल सके, बिकॉज व्हेन यू स्टॉप यूजिंग इट, it automatically go to the sleep mode. Whenever you log into the day, you can see here either it's in the start mode condition or it is in sleeping. You need to wake it up, right? So every application has their different functionality. AWS का अपना एक अलग functionality है और ServiceNow का एक अपना है और Salesforce का एक अपना अलग functionality configuration है. So it can't be the same. All the application have the same functionality. It can't be happen, right? तो सबका एक ही होना चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है. अगर AWS स्लीप मोड जाता है या फिर उसको शट डाउन कर सकते हैं, आप लोग यूज कर सकते हैं. That shouldn't be necessary to have the same functionality. और एक और पॉइंट है, ये प्रोडक्शन इंस्टेंस नहीं है, ये सर्विस नाउ ने स्पेसिफिकली ट्रेनिंग और टीचिंग के लिए दिया हुआ है, फ्री में दिया हुआ है. सो there would be a mechanism to shut it off and pause it and all that, but it is not on this instance because this is purely for training and it is free. Correct. So the first look of the user interface of ServiceNow. You can see here. Do you able to all see this? Right? You might have seen yesterday as well, those who created the PDI, their accounts. Yes or no, everyone? Yes, yes. So I was Yes. talking about the project, how the project runs or how the people work in the ServiceNow project. So I was saying that कि US से हमें एक project मिला. किसको मिला? RiseUp India को. तो what they will the management will sit and discuss कि आप कैसे manage करें इसको. ये इंटरनल चीजें कि हाउ द थिंग्स हैपन इन मैनेजमेंट लेवल. एक जब प्रोजेक्ट आता है तो हाउ थिंग्स गोस, कि हम सबको भी जानना जरूरी है कि भी सर्विस नाउ कैसे काम करता है. हाउ दे गेट देयर कैंडिडेट्स, की डेवलपर को कैसे लेते हैं, टेस्टर को कैसे लेते हैं, कितने क्वांटिटी में लेते हैं प्रोजेक्ट में, कंसल्टेंट का क्या रोल है, आर्किटेक्चर का क्या रोल है, आर्किटेक्ट का क्या रोल है, टीम लीड का क्या रोल है इसमें, और स्क्रम मास्टर भी है. ये सारी चीजें आज हम जॉब रोल्स की जो है ना, जो जॉब रोल्स हैं सर्विस देंगे. तो यहाँ पर
there are around the 5 to 6 job roles comes under ServiceNow. ServiceNow में 5 या 6 लगभग मोस्टली ज्यादातर जो है ना 2 जो है ना जॉब रोल ज्यादा यूज होते हैं. फर्स्ट I can let me show you in the notepad. Job roles in ServiceNow. ठीक है. Is my voice clear and good, loud? Yeah, clear. Is it fine? क्लियर. Yeah, clear. Okay. अभी राइजअप के पास एक प्रोजेक्ट आया एंड दे आर डिस्कसिंग कि यार कैसे करें. अभी प्रोजेक्ट आ गया हमारे पास, उन्हें सपोर्ट देना है. तो the 100 peoples are there in which company? 1000. I said 1000 peoples are there who are using ServiceNow in AT&T company in USA, right? अब इन्होंने सपोर्ट मांगा राइजअप कंपनी को कि हमारे पास 1000 एम्प्लॉइज हैं, तो जो ये यूज करने वाले सर्विस ना, और हमें सपोर्ट चाहिए. हमारे टिकट्स भी रिजॉल्व होने चाहिए, इसमें कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए हमारे प्लेटफॉर्म पे. तो आप कैसे करेंगे बताइए. तो ये जब मैनेजमेंट जब बैठेंगे तो ये लोग क्या करेंगे. 1000 एम्प्लॉइज हैं तो हम क्या करेंगे, 3 डेवलपर्स लेंगे. कौन डेवलपर? ServiceNow डेवलपर लेंगे. ठीक है, 3 डेवलपर्स ले लिया. उसके बाद में 3 लोग डेवलपमेंट करेंगे और उसमें 2 टेस्टर लेंगे. जो डेवलप करेगा वो टेस्ट भी करेगा. डेवलपर का क्या रोल है ServiceNow में? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. यहाँ पर इंसिडेंट मैनेजमेंट एक एप्लीकेशन ओपन करता हूँ यहाँ से. I will tell you what it exactly the user interface की क्या फंक्शन है, इसको क्या कहते हैं मैं आपको बताता हूँ. पहले let me go through you one incident application. ये implement, अभी जो डेवलपर का रोल है मैं आपको बता रहा हूँ कि डेवलपर क्या करता है एग्जैक्टली. अब ये इंसिडेंट मैनेजमेंट एप्लीकेशन है. इंसिडेंट एप्लीकेशन है. यहाँ पर यू कैन सी द फ्यू फील्ड्स आर देयर की इंसिडेंट नंबर है, कॉलर है, कैटेगरी है. डेवलपर का क्या रोल होता है कि डेवलपर को रिक्वायरमेंट आती है कि बाबा यहाँ पर हमें एक और एक फील्ड चाहिए. लाइक यहाँ पर कंपनी है, वी वांट वन मोर फील्ड नीड अंडरनीथ इट की. ये कंपनी है तो हमें सब कंपनी चाहिए. यहाँ पर इसके नीचे एक सब कंपनी फील्ड चाहिए, सब कंपनी, और उसके रेफरेंस जो है ना टाइप होना चाहिए फील्ड का. व्हेनेवर वी हैव सिलेक्टेड हियर कि हमें यहाँ पर लिस्ट दिखाना चाहिए अंदर. तो दिस काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट कम्स यू नो लॉट ऑफ टाइम्स कि बहुत ज्यादा टाइम पे ये डेवलपर की रिक्वायरमेंट होती है कि डेवलपमेंट है, डिजाइनिंग है, कि हमें नंबर वाली जो फील्ड है ये यहाँ पर नहीं चाहिए, हमें नीचे चाहिए. कॉलर वाली फील्ड हमें यहाँ पर नहीं चाहिए, हमें इधर राइट में चाहिए, लेफ्ट में चाहिए, ऊपर चाहिए, नीचे चाहिए. कॉन्फ़िगरेशन डिजाइनिंग कौन करता है? कौन करता है? एनीवन? डेवलपर. डेवलपर करता है. जब डेवलपमेंट कंप्लीट होता है, जैसे कि रिक्वायरमेंट थी कि ऐड टू फील्ड्स ऑन इंसिडेंट फॉर्म. डेवलपर ने 2 फील्ड ऐड किया. अब उसके बाद में जो रोल आता है टेस्टर का होता है. तो टेस्टर क्या करता है, जो डिटेल्स आई थी 2 फील्ड ऐड करने की, फर्स्ट नेम वाज सब कंट्री और फोन नंबर पर इंसिडेंट एप्लीकेशन के ऊपर. गॉट इट? तो इन्होंने ऐड किया, डेवलपर ने ऐड किया 2 फील्ड. अब टेस्टर का काम होता है कि वो जो 2 फील्ड्स ऐड करनी थी, हैज ही एडेड दोस करेक्टली, आर दोस ऑल द फील्ड्स ऑन द करेक्ट लोकेशन जहां पर उन्होंने बताया था कि कैटेगरी के नीचे होना चाहिए. बिकॉज वी एवरी टाइम वी गेट द रिक्वायरमेंट इट कम्स अंडर द डॉक्यूमेंट में आता है. इट कम्स इन डॉक्यूमेंट कि डॉक्यूमेंट होता है कि कौन सी पोजीशन पे होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, उसका नाम क्या होना चाहिए. he will go through with the document कि पोजीशन नंबर 6 पे होना चाहिए, लेफ्ट साइड में बिलो कैटेगरी. तो टेस्टर क्या करेगा, एग्जैक्ट पोजीशन पे है, हाँ एग्जैक्टली पोजीशन पे है, और द नेम्स आर आल्सो करेक्ट. he will give the confirmation testing is done कि पोजीशन सही है. दिस इज द रोल ऑफ टेस्टर. और टेस्टर क्या करेगा, इंटरनल टेस्ट होगा. टेस्टर का टेस्टिंग जो होगा वो इंटरनल होगा अपने ही इन्वायरमेंट पे, कि हम
अभी वी आर आफ्टर दिस डिस्कशन ऑफ जॉब रोल्स के बारे बाद में हम इन्वायरमेंट के बारे में बात करें, कितने इंस्टेंसेस होते हैं सर्विस नाउ में विच प्रोवाइडेड बाय सर्विस नाउ, कि जैसे हमने अभी तक इंस्टेंस पे बात नहीं किया, हम इसके बाद बात करेंगे। टेस्टर का रोल पता चल गया सबको कि क्या टेस्टर का रोल है, क्या रोल होता है टेस्टर का? कैन एनीवन एक्सप्लेन? टेस्ट करने के लिए वो अभी जो चेंजेस किए उसके ऊपर सिस्टम का कुछ इम्पैक्ट तो नहीं हो रहा। करेक्ट करेक्ट। अपार्ट फ्रॉम शाहरुख, राइट? हु वाज दिस? शाहरुख? हाँ, मैं शाहरुख। हाँ, शाहरुख के अलावा कोई बोलता ही नहीं है ग्रुप में। कैन समवन एल्स टेल द व्हाट इज द डेवलपर जॉब? असीम, फातिमा, आई वांट टू स्पीक एवरीवन, कि सब बात करना चाहिए तो समझ में आएगा। बात करेंगे, मेरे साथ इंटरेक्ट So, करेंगे तो बात समझ में भी आएगी। समझ में आएगी तो हम इम्प्लीमेंट करेंगे भी चीज। जब व्हेनेवर वी विल बिकम अ डेवलपर तो हम ये चीज करेंगे। बात नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आएगी चीज। एनीवन एल्स? फातिमा, व्हाट इज डेवलपर जॉब? डिजाइन, कॉन्फ़िगर, कस्टमाइजेशन। मेन ये 3 रोल होते हैं किसके? डेवलपर के। कौन से? डिजाइन, कॉन्फ़िगर एंड कस्टमाइजेशन। डिजाइन करना है स्क्रैच से, या कॉन्फ़िगरेशन करना है विच इज ऑलरेडी देयर, कि उसमें कॉन्फ़िगरेशन करना है, ये चेंजेस करने हैं, और कस्टमाइजेशन करना है, पूरा बदलना है उसको, या एज पर द रिक्वायरमेंट थोड़ी सी चेंजेस करनी। टेस्टर का रोल क्या है? टेस्ट जो डेवलपर ने डेवलप किया है, Test the डिजाइन changes. किया है, टेस्टर विल टेस्ट द डेवलप्ड थिंग। ओके, ये And समझ में आ गई we have चीजें? we have someone in the group, मेरे को अभी नाम याद नहीं आ रहा है, who is a tester, right? शुभम, शुभम आई शुभम, थिंक, हाँ। शुभम, राइट? शुभम यार, ये और टेस्टर और आप टेस्टिंग के बारे में बोल नहीं रहे हो, एंड yes, क्या बात है? the job is सर्विस नाउ में ही टेस्टिंग कर रहे हो, बराबर है? yes, tester job is to validate if development is done right, all the functionalities, that field placements and all. सही है ना? सही है. आपका क्या रोल है, आप क्या करते हैं बताइए? आप टेस्टिंग में Function, डेवलपर जब डेवलप हिज व्हेन द डेवलपर डन हिज जॉब, कि उनका जब काम होता है तो व्हाट ही विल डू, ही नेक्स्ट प्रोसेस टू ही विल तो रिक्वायरमेंट है वो आगे पास करता है टेस्टर को, कि मैंने डेवलप किया है, आप टेस्ट करो इसको। व्हेन यू वैलिडेट इट एंड यू शेयर द स्टेटस ऑफ पास, कि मैंने टेस्टिंग किया है और इट्स गुड एज पर द रिक्वायरमेंट, वर्किंग फाइन, राइट? तो टेस्टर का जॉब होता है कि जो डेवलपर ने जो डेवलप किया है, डिजाइन किया है, कॉन्फ़िगरेशन एज पर द टिकेट स्टोरेज रिक्वायरमेंट तो फुलफिल हुआ है, एंड ही विल गिव द ग्रीन सिग्नल टू द नेक्स्ट स्टेप, कि जब टेस्टर टेस्ट करता है तो स्टोरी आगे बढ़ती है। जब टेस्टिंग टेस्ट करता है तो उसके बाद में यूएटी के लिए, जहां पर जो है जिन्होंने स्टोरी या रिक्वायरमेंट क्रिएट किया था, क्लाइंट ने कहा था कि आई वांट 2 फील्ड्स ऑन इंसिडेंट टेबल, राइट? जब ये स्टोरी क्रिएट हुई थी तो इनका नाम वहां पर था। देयर विल बी अ नोटिफिकेशन सेंड टू द यूजर, कि यहाँ पर कॉलर क्लाइंट को एक नोटिफिकेशन जाएगा, आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई, हमने टेस्ट भी किया है, आप अपनी एंड से टेस्ट करो इसको। यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। तो यूजर जब टेस्ट करेगा क्लाइंट, हाँ ये जो मैंने रिक्वायरमेंट दी थी वो फुलफिल हो गई है, वर्किंग एज एक्सपेक्टेड, जैसे मैंने चाहा था वैसे ही काम कर रहा है, सो देन इट विल गो टू द प्रोड जाता है। एक टाइम डिसाइड होता है, फिर यहाँ से डेवलपर इन्वायरमेंट से निकाल कर टेस्ट इन्वायरमेंट में डालता है। डेवलपमेंट की जो चीजें हैं, रिकॉर्ड जो होती है, कैप्चर होती हैं, टेस्ट इन्वायरमेंट में जाएंगी, यहाँ से इसके बाद में प्रोडक्शन पे जाती है। ये हम इन्वायरमेंट का डिस्कशन करेंगे रोल्स के बाद में। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट द रोल्स इन सर्विस नाउ। फर्स्ट कौन सा रोल हो गया? सॉरी यूनुस, बिफोर यू मूव ऑन टू द अदर वन, टेस्टिंग को छेड़ा है तो if you can just type on your screen V process model, V hyphen प्रोसेस V मॉडल। process model. Okay, so this is generally followed in testing, right?
टेस्टिंग में भी आजकल मल्टीपल मेथोडोलॉजीज हैं, बट वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इज समथिंग कॉल्ड एज वी प्रोसेस मॉडल, और अनदर वी प्रोसेस मॉडल के आगे एक और वर्ड लिख दो, यू नो, इट्स कॉल्ड TDD. TDD. Okay. So quickly, let me explain कि ये how does this cycle work. तो यूनुस बता रहे थे कि सबसे पहले स्पेसिफिकेशन लिखी जाती है, राइट? स्पेसिफिकेशन लिखी जाती है, मतलब यूनुस वो सेइंग कि मुझे एक फील्ड इधर ऐड करना है सब कंपनी, और नंबर का फील्ड मुझे मूव करना है, और ऐसा होना है, इसका लोकेशन इधर होना चाहिए, उधर होना चाहिए. तो ये सब जो लिखे जाते हैं रिक्वायरमेंट्स और स्पेसिफिकेशन लिखे जाते हैं, ये तो खाली वेरी हाई लेवल पे यूनुस ने बताया कि मुझे एक नया फील्ड चाहिए सब कंपनी. उसके साथ बहुत सारी और रिक्वायरमेंट्स भी लिखी जाएंगी कि उसके अंदर एक जो ड्रॉप डाउन लिस्ट होगी, वो लिस्ट कहाँ से आएगी. जैसे आपने देखा होगा वो कंपनी के अंदर ड्रॉप डाउन लिस्ट आ रही थी, एक्मे जर्मनी, एक्मे अर्जेंटीना, एक्मे फलाना, एक्मे ढिमकाना. तो वो कहाँ से आएगा, राइट? वो हार्ड कोडेड है या किसी और डेटाबेस से लेके आ रहा है, या जो भी कर रहा है. तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स है. ओके, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से नाउ इज रिक्वायरमेंट के साथ साथ उसका टेस्ट केस भी लिखा जाता है. समझ में आ रही है बात? जब कोई डेवलपर भी रिक्वायरमेंट लिखते हैं कभी कभी, बट कभी नॉर्मली बिजनेस एनालिस्ट या आर्किटेक्ट जो होते हैं वो रिक्वायरमेंट लिखते हैं कि ये वाली फील्ड यहां से वहां मूव करनी है. ये रिक्वायरमेंट नंबर 1 हो गई. लगे हाथ उसके साथ साथ ही उसका ये हो जाएगा, टेस्ट केस लिखा जाएगा कि इसको हम टेस्ट कैसे करेंगे. तो टेस्ट केस उसका ये लिखा जाएगा कि ठीक है, यूजर लॉग इन करेगा, अलग अलग टाइप के यूजर हो सकते हैं, राइट? एक यूजर जर्मनी में बैठा होगा, वो लॉग इन करेगा तो उसको ये फील्ड दिखेगा. अगर दिखेगा तो ये टेस्ट पास हो गई, राइट? सो पॉइंट जो ये मैं कह रहा हूँ, वी प्रोसेस मॉडल में ऐसा होता है कि जहां आपने रिक्वायरमेंट लिखी, साथ साथ आपने टेस्ट केस भी लिखा. टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट में क्या होता है, एक स्टेप आगे जाते हैं कि पहले आप टेस्ट केस लिखते हो और वो टेस्ट केस फेल हो जाता है, बिकॉज आपने कुछ बनाया ही नहीं है अभी तक, राइट? टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट में पहले आप टेस्टिंग के लिए स्क्रिप्ट लिखोगे. टेस्टिंग भी आजकल ऑटोमेटेड होती है, तो टेस्टिंग के लिए आप स्क्रिप्ट लिखोगे और वो स्क्रिप्ट रन करोगे. स्क्रिप्ट रन करते ही क्या होगा, वो स्क्रिप्ट फेल हो जाएगी, वहां पे दिखाएगा एरर, बिकॉज वहां वो फील्ड है ही नहीं, है जो आपको डेवलपमेंट करना था वो तो आपने की नहीं. जब वो टेस्ट फेल हो जाएगी, तब वो डेवलपर बोलेगा अरे यार ये टेस्ट फेल हो गई, इसको पास कराना है. तो फिर वो फील्ड बनाएगा जो बनाएगा और वो टेस्ट वापस रन करेगा, तो वो टेस्ट पास हो जाएगी. समझ में आया टेस्टिंग? यस. Yes, no. थैंक यू, थैंक यू. कोई कोई एक स्टूडेंट जस्ट रिपीट कर दे मैंने क्या बोला टेस्टिंग के बारे में. मे नॉट बी फुल, बट मैंने टेस्टिंग के बारे में कुछ अभी 5 मिनट बात किया. कोई एक अटेम्प्ट करे बात करने के लिए कि क्या है. कैन एनीबॉडी थिंक ऑफ सेइंग? शुभम जी थोड़ा बता सकते हैं हमें वो प्रैक्टिकली. करेक्ट. After, means in TDD model, first when requirement is there, we first design a test case and try to fail it. After failing the test case, then we do the devs. For example, like field is not present, then we will add that field and do testing again. थैंक्स शुभम. चल, ओके, तो कितने रोल्स हो गए अभी प्रोजेक्ट में? कितने रोल्स हो गए? प्रोजेक्ट हम अभी स्टार्ट Two. करने वाले हैं. कितने रोल्स हो गए अभी इसमें बताइए? कौन से Two roles. Which one those two? Anyone? कौन से 2 रोल हो गए? Developer and tester. करेक्ट. Who is that? Shubham. शुभम और शाहरुख के अलावा भी है कुछ लोग. Why are you not speaking, guys? Speak up. तो ये आपको कॉन्फिडेंस देगा. बात जितना करोगे आप, टेक्निकली वर्ड्स जितना बार बार बोलोगे ना आपको, तो उतना थोड़ा सा उस चीज का हैबिट होगा. और यही नहीं बोलना है, आप फेस करेंगे आगे जाके इंटरव्यू. क्लाइंट से भी बात करनी है, इंटरव्यू भी देना है, तो बोलना है. प्रैक्टिस करो. हाँ, अगर आप यहाँ पर नहीं बोलोगे तो फिर आगे
इंटरव्यूअर के सामने तो आपका मतलब बोल ही नहीं पाओगे आप सिंगल वर्ड। सो टेक्निकली वर्ड्स हैं, या बार बार रिपीट करने के बाद में वी आर गेट यूज्ड टू इट, कि वर्ड्स से हम यूज्ड टू हो जाएंगे, आदत हो जाएगी इन वर्ड्स की, तो हम बोल पाएंगे आगे। आर यू गेटिंग मी व्हाट आई एम सेइंग टू यू? कि आपको रिपीट करना है, इधर यू आर गेटिंग इट और नॉट, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, लेकिन वर्ड्स को आप अडॉप्ट कर लो चीजों को। डेवलपमेंट क्या है, डिजाइन क्या है, कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कस्टमाइजेशन क्या है, टेस्ट, डिप्लॉयमेंट, ये सारी चीजें वर्ड्स को बार बार रिपीट करिए। इट विल हेल्प यू इन फ्यूचर। यस, नो? Yes. यस। मुझे आप सब लोगों का सपोर्ट चाहिए, तो अब हम सीख सकते हैं, मैं भी सिखा पाऊंगा ठीक से, आप भी समझ पाएंगे। तो दिस वे वी कैन गो फॉरवर्ड। अदरवाइज कि मैं बोलता रहूंगा, आप सुनते रहेंगे, मुझे पता नहीं चल रहा है कि आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही है चीजें, आप बोल भी नहीं पा रहे हो। आई वांट एवरीवन टू स्पीक अप। ओके, तो कितने रोल हो गए? दो, डेवलपर और टेस्टर। टीम तैयार हो रही है, अभी एक प्रोजेक्ट हमें मिला है, हम एक टीम बना रहे हैं जो कि वो सपोर्ट कर सके। क्या कौन सा प्रोजेक्ट है? एटीएन, उसके ऊपर में काम करते हैं लोग, यूएस बेस्ड है। अब यहाँ पर हम इंडिया में वो प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए टीम को रेडी कर रहे हैं। 3 हमने डेवलपर ले लिया, कि इनकी जो भी रिक्वायरमेंट आएगी, इन्हें कहीं चाहेगा कि भी यहाँ पर नंबर नीचे ऊपर चाहिए, कोई भी क्या रिक्वायरमेंट आ सकती है, कॉन्फ़िगरेशन करना है, कस्टमाइजेशन करना है। फिर उसके लिए जब ये हो गया डेवलपर का काम, उसके लिए टेस्टर भी लगेगा हमें। डेवलपर कांट डू एवरीथिंग, कि डेवलपर की बोलो आप टेस्ट करो, सारी चीजें करो, नहीं कर सकता। तो वी नीड एटलीस्ट वन टेस्टर हियर, एटलीस्ट वन। कि डेवलप करना दैट मच नॉट डिफिकल्ट एज कंपेयर टू द डेवलपर। जितना डेवलपमेंट करना हार्ड है, टेस्टिंग करना उतना हार्ड जॉब नहीं है। एम आई राइट शुभम? Yes. तो हमने एक टेस्टर ले लिया और 3 डेवलपर ले लिए। उसके बाद में हम लेंगे कंसल्टेंट या आर्किटेक्ट, या फिर हम कंसल्टेंट ले लेते हैं। ठीक है, कंसल्टेंट ले लिया। व्हाट इज द रोल ऑफ आर्किटेक्ट? क्या होगा, इस चीज का डेवलपमेंट का, Right. इस रिक्वायरमेंट फुलफिलिंग का रिस्पॉन्सिबल होगा। जब ये रिक्वायरमेंट आएगी डिजाइन की, कस्टमाइजिंग की, कॉन्फ़िगरेशन की, तो आर्किटेक्ट इसको देखेगा कि इसमें अगर ये हम फील्ड ऐड करते हैं, कुछ इम्पैक्ट गिरेगा क्या, किसी को कल इशू हो सकता है क्या, इन फ्यूचर किसी को कोई इशू हो सकता है क्या, बिकॉज ही इज एक्सपर्ट इन डेवलपमेंट एंड ऑल। ही हैज मोर देन 7 years ऑफ एक्सपीरियंस इन सर्विस नाउ, या 10 years ऑफ प्लस एक्सपीरियंस इन सर्विस नाउ। ही इज आर्किटेक्ट। ये फील्ड्स का क्या काम है, और इसके अंदर कौन सी क्या वैल्यूज हैं, ड्रॉप डाउन ऑप्शन में क्या फील्ड्स हैं, इनसे क्या होता है, ही नोज एवरीथिंग। अगर हम ऐड करते हैं 2 फील्ड्स यहाँ पर, विल दोज इम्पैक्ट, फ्यूचर में इम्पैक्ट करेंगे, किसी कुछ इशू हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम हो सकता है इन फ्यूचर। आर्किटेक्ट क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है इस चीज का, रिक्वायरमेंट का। व्हेन एनी रिक्वायरमेंट कम्स, आर्किटेक्ट हैव हिज लुक ऑन दिस, कि ये इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ही एडिंग 2 फील्ड्स, इट विल नॉट इम्पैक्ट, कि 2 फील्ड ऐड करना इसको मुश्किल नहीं होगी और कोई इम्पैक्ट भी नहीं होगा आगे चल के। तो आर्किटेक्ट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। और कंसल्टेंट क्या होता है? कंसल्टेंट ये होता है हु हैज मोर एक्सपीरियंस देन डेवलपर। कंसल्टेंट, जब डेवलपर किसी चीज रिक्वायरमेंट में स्टक हो जाता है, ही इज नॉट गेटिंग व्हाट टू डू नेक्स्ट, और क्या कैसे करे, इफ ही स्टक समवेयर, कंसल्टेंट इज देयर टू हेल्प हिम। कंसल्टेंट क्या है? एक कंसल्टेंट होता है ग्रुप में, ही इज मास्टर इन डेवलपमेंट, ही इज मास्टर इन कॉन्फ़िगरेशन, कस्टमाइजेशन, ही इज मास्टर। डेवलपर हु हैज एक्सपीरियंस इन 2 years 3 years की इसको डेवलपमेंट का नॉलेज है, ही इज डूइंग हिज जॉब। इफ ही स्टक समवेयर, फिर किसके हेल्प लेगा ये? कंसल्टेंट इज देयर, कि कंसल्टेंट से कांटेक्ट करेगा, ही विल हेल्प हिम टू गाइड, कि ही इज मास्टर इन दिस। लेकिन पहले कंसल्टेंट का एक रोल अलग होता था, लेकिन सर्विस नाउ में भी अलग, इट्स चेंज नाउ। कंसल्टेंट क्या होता है? ही रिप्रेजेंट हिज बिजनेस, कि सर्विस नाउ बिजनेस रिप्रेजेंट करना है कंसल्टेंट का रोल है। लेकिन यहाँ पर हु इज मास्टर इन सर्विस नाउ डेवलपमेंट, डिजाइनिंग, कॉन्फ़िगरेशन, that is called consultant. Architect क्या होता है? Responsible होता है the changes we are making here or any other application like problem change, कुछ भी हम configuration design कर रहे हैं, एक requirement आ गई कि change में से state हटा दो, impact field हटा दो, इसके बहुत जरूरी है, इनको नहीं हटा सकते। अगर इस ये रिक्वायरमेंट आ गई, डेवलपर को पता ही नहीं है कि अगर ये हटा देंगे तो सबको प्रॉब्लम हो जाएगा, जितने भी थाउजेंड्स ऑफ प्लेटफॉर्म ये इन्वायरमेंट, तो उनको प्रॉब्लम हो सकती है। स्टेट ही अगर यहाँ से गायब कर देंगे, हटा देंगे, तो फिर स्टेट कैसे पता चलेगा? आर यू गेटिंग में? समझ में आ रहा है?
द पिक्चर दैट टाइम कि ये फील्ड हम नहीं हटा सकते, वी कैन नॉट फुलफिल योर रिक्वायरमेंट कि स्टेट ये इसेंशियल फील्ड है एंड एवरी यूजर नीड टू नो द स्टेट ऑफ हिज इंसिडेंट और रिकॉर्ड के स्टेट पता होना उन्हें जरूरी कि न्यू स्टेट में है, प्रोग्रेस में है, होल्ड पे है, रिजॉल्व है, तो ये नेसेसरी है। तो ये आर्किटेक्ट विल कम इन दैट पिक्चर कि ये रिक्वायरमेंट आपकी फुलफिल नहीं होगी, ही विल हेल्प टू द क्लाइंट्स कि ये नहीं कर सकते फुलफिल आपकी रिक्वायरमेंट। उसके बाद में आते हैं टीम लीड। एक टीम लीड भी चाहिए टीम को रन करने के लिए, करेक्ट? एक प्रोजेक्ट में एक ही टीम लीड होता है ना, am I right शुभम? क्या दो Yes. होते हैं नहीं एक ही होता टीम लीड? एवरीबॉडी नो व्हाट इज द रोल ऑफ टीम लीड? टीम लीड का क्या काम होता है? जो भी रिक्वायरमेंट्स आती हैं यहाँ से, जो रिक्वायरमेंट आ गई है, जो स्टोरी क्रिएट होती है, जब रिक्वायरमेंट आती है ऐसे नहीं कि लिख कर आती है, मेल पर आती है, देयर इज एक्चुअली अ प्रोसेस की स्टोरी, देयर इज वन एप्लीकेशन कम्स हियर इन सर्विस नाउ आउट ऑफ बॉक्स, अजाइल मेथोडोलॉजी जिसे कहते हैं। स्टोरी क्रिएशन होती है, स्टोरी क्रिएट होती है, स्टोरी जब असाइन क्रिएट होती है, स्टोरी क्रिएट होने के बाद में एंड हु क्रिएट्स द स्टोरी, इसके बाद में हम आते हैं टीम लीड क्या करता है, he distribute to the his developer कि डेवलपर आज 3 स्टोरीज आई हैं, आप 3 लोग बांट लो। 3 स्टोरी आई हैं, तीनों में बांट दिया कि शुभम एक करेगा, शाहरुख एक करेगा, तन्मय करेगा, तीनों आप ये तीनों रिक्वायरमेंट पे काम कर लो। किसका रोल है वो? टीम लीड का। और फॉलो अप की, आप इनको बांट दी हमने 3 टिकट, 3 स्टोरी हमने बांट दी डेवलपर को, आज हमने दे दी, कल वी विल आस्क देम अपडेट कि क्या हो गया, डिजाइन करने के लिए बोला था, ये रिक्वायरमेंट थी, कॉन्फ़िगरेशन था, कस्टमाइजेशन था, तन्मय शेयर योर अपडेट। तो क्या होता है, देयर इज अ डेली कॉल इन अ प्रोजेक्ट की एवरी डे वी हैव अ कॉल एट 3 PM इन द आफ्टरनून, ये डेली अपडेट कि जो असाइनमेंट आपको दी गई थी वो आपने क्या किया, डेवलपमेंट का काम हो गया, डेवलपर हैज डन हिज वर्क। अब टेस्टर से पूछा जाएगा कि फातिमा यू आर अ टेस्टर, बताओ आपने टेस्टिंग किया जो इन्होंने डेवलपमेंट कंप्लीट किया था, राइट? और कंसल्टेंट का रोल होता है कि ये जो काम ये लोग कर रहे हैं, आर दे ऑन द वर्किंग ऑन द राइट पाथ, की सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कंसल्टेंट विल बी देयर कि इनको कुछ ना कुछ कंसर्न आएगा, कुछ ना कुछ क्वेरीज क्रिएट होंगी, कंसल्टेंट विल गाइड देम। ओके, टीम लीड का रोल समझ में आ गया यहाँ पर? यस आ शुभम? गए। हाँ सर। Yes. Yes, sir. ठीक है, सो ही विल टेक द फॉलो अप of all the stories which are getting created for the development project related, जितने भी stories create हो रही हैं, he will have the follow up। अगर किसी और एक काम बढ़ गया, अभी stories पहले 5 आती थी in a day, अब आ रही हैं 10, अब ये 3 लोग तो नहीं हैंडल कर सकते, इतना टीम लीडर का यहाँ पर रोल होगा। he will have 2 more developer, he will add 2 more developer to his team कि अब फुलफिल नहीं हो रही, रिक्वायरमेंट ज्यादा आ रही है, his job will be, अगर काम कम हो गया, he can decrease the developers as well। अब बजट कम है प्रोजेक्ट का, हम इतना एफर्ट नहीं कर पाएंगे, एवरी डेवलपर हैज अ 1 डेवलपर, 10 लाख तो ही नहीं देना पड़ रहा है, बजट कम है, लो बजट है, तो टीम लीड डिसाइड करेगा कि हमें 5 नहीं चाहिए, अभी 3 ही चाहिए, हमें डेवलपर काम कम है, लोड कम है, तो ही विल डिक्रीज द टीम मेंबर्स। अब काम बढ़ गया तो 5 ले लिया हमने, टेस्टर भी बढ़ा दिया हमने, 2 ले लिया, ये टीम लीड का जॉब है। किसका जॉब है ये? टीम लीड विल डिसाइड कि कौन कहाँ करेगा, और फिर ही विल चेक द व्हाट आर द अदर स्किल्स ही हैज, कि अगर ये 3 साल हो गया प्रोजेक्ट में, बहुत अच्छा डेवलपमेंट का काम कर रहा है, ही विल गेट अ प्रमोशन एज अ कंसल्टेंट या फिर आर्किटेक्ट, ही विल, ऐसे अप्रेजल होता है। टीम लीड विल अप्रोच, ही विल शेयर हिज फीडबैक टू द मैनेजमेंट कि अब ये डेवलपर जो शाहरुख अब 3 साल से हमारे प्रोजेक्ट में बहुत अच्छा काम कर रहा है, ही हैज वेरी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, अब डेवलपमेंट में बहुत अच्छा हाथ साफ हो गया इनका, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, so he will share his feedback to the management, they will give him promotion की consultant बने या फिर और senior developer बने, ठीक है? so this is the role of, किसका काम है ये? टीम लीड का है, to have the follow up on the story कि फुलफिल हुई नहीं हुई, क्यों स्टक है स्टोरी, 3 दिन से एक ही स्टेट पे है, काम हो रहा है नहीं हो रहा है। इसके बाद में एक और रोल होता है सर्विस नाउ में, which is स्क्रम मास्टर। नाउडेज अभी बहुत चल रहा है, स्क्रम मास्टर्स होता है, स्क्रम मास्टर। जैसे अभी मैंने बताया कि एक एप्लीकेशन है, एक मेथोडोलॉजी है अजाइल और जीरा, बहुत सारी आती है जिस पर स्टोरी क्रिएट की जाती है और स्टोरी को फॉलो अप किया जाता है। व्हेनेवर ये स्क्रम मास्टर का काम होता है, जब रिक्वायरमेंट आती है, ही विल क्रिएट अ स्टोरी, हिज जॉब टू क्रिएट अ स्टोरी। इसने स्टोरी क्रिएट किया, न्यू स्टेट में लेकर आया, अब टीम लीड भी होगा कॉल पे, अब ही विल सी द रिक्वायरमेंट कि यहाँ पर एक ऑटोमेशन ऐड करना है कि जब भी
कॉलर यूनुस हो तो एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन फील्ड शुड बी हिडन, कि हाइड होनी चाहिए, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन फील्ड हाइड होना चाहिए. नाउ द टीम लीडर नोज की कैपेबिलिटी क्या है, कौन कर सकता है. ही विल असाइन दोस टिकट टू द इंडिविजुअल, कि हम ये शाहरुख को दे दिया टिकट. स्क्रम मास्टर का जॉब क्या है, स्टोरी क्रिएट करना. रिक्वायरमेंट जब आती है तो ही विल गैदर ऑल द रिक्वायरमेंट और स्टोरी क्रिएट करेगा. एंड ही विल टेक द द फॉलो अप्स. जो टीम लीड का रोल था, जब स्क्रम मास्टर जब टीम में आ जाता है, ही विल हैव द फॉलो अप एवरी डे. स्क्रम कॉल कहते हैं उसको हम डेली. ये 3 से 4 टीम लीड का कॉल था, तो अब 4 से 4:30 तक होगा स्क्रम मास्टर का कॉल. 4 to 4:30 4 to 4:30 स्क्रम मास्टर का कॉल होगा. ही विल हैव अपडेट एवरी डे कि यूनुस आपको एक स्टोरी असाइन की थी और इसका क्या स्टेटस है. ही विल शेयर हिज अपडेट. शाहरुख आपको एक असाइनमेंट असाइन हुआ था, एक स्टोरी असाइन हुई थी, इसका क्या अपडेट है. ही विल कि मुझे एक प्रॉब्लम आ रहा है, क्लाइंट से बात करनी है, फिर ये थोड़ा सा रिक्वायरमेंट फुलफिलमेंट नहीं हो पा रही है, कि कंप्लीट डिटेल्स नहीं है, मुझे और डिस्कशन करना है, टाइम चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए. व्हाटएवर ही हैज हिज अपडेट, ही विल शेयर विद स्क्रम मास्टर एंड ही विल मेंशन इन द कमेंट, कि स्टोरी के कमेंट में कहेगा कि यूनुस डिड हिज डेवलपमेंट, ही स्टक समवेयर और ही इज वर्किंग ऑन द सेम स्टोरी. सो ही विल हैव द कमेंट ऑन इट कि स्क्रम मास्टर का ये रोल होता है. स्क्रम मास्टर का रोल समझ में आ गया. रिक्वायरमेंट गैदरिंग करना, जो रिक्वायरमेंट आती है, रिक्वायरमेंट आने के बाद में उससे स्टोरी क्रिएट करना, उनका फॉलो अप लेना. क्रिएशन ऑफ स्टोरी एंड फॉलो अप. स्टोरी एंड फॉलो अप. अब इसके बाद में एक मेन रोल पिक्चर में आता है, वो है बीए. व्हाट इज बीए? एनीवन नो? business Business analyst. analyst. करेक्ट, एवरीबॉडी नोज. आई थिंक बिजनेस एनालिस्ट का काम क्या होता है, कि बिजनेस लेकर आना. बिजनेस एनालिस्ट का काम ये होता है कि क्लाइंट से बिजनेस लाना. ये बिजनेस कैसे आया यहाँ पर, ये अपने आप आ गया राइज अप इंडिया में. ये जो बिजनेस आया है, कौन लेकर आया? ये बीए लेकर आया, बिजनेस एनालिस्ट. बिजनेस एनालिस्ट जो होता है, हर कंपनी का अपना एक बिजनेस एनालिस्ट होता है. वो ट्रैवल एवरीवेयर इन ग्लोबली, कि वो जाते हैं कि वो कहते हैं हमारे पास में सर्विस नाउ की एक टीम है, बहुत अच्छा काम करती है, डेवलपर है, सीनियर डेवलपर है, टेस्टर है, आर्किटेक्ट है, कंसल्टेंट है, टीम लीड है और स्क्रम मास्टर बहुत अच्छा काम करते हैं. आपकी क्या बिजनेस रिक्वायरमेंट है? he go and he represent himself as a TCS, Accenture, Wipro, कि मैं विप्रो का बिजनेस एनालिस्ट हूँ और हमारे पास में ये प्रोजेक्ट्स हैं, हम इतने पे काम कर रहे हैं, हमारे पास अभी फिलहाल 1000 प्रोजेक्ट्स हैं, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, उसमें डेवलपमेंट दी, सो ब्ला ब्ला ब्ला, सो मेनी थिंग्स हम कर रहे हैं. ही रिप्रेजेंट फ्रॉम द कंपनी. यस, यू वांट टू ऐड समथिंग संजीव? Yeah. So, Yes, sir. can I share my screen for a bit? Sure, no worries. Yes, you can. Just a minute. If you can stop sharing, let me quickly share my screen. Okay. Okay. So, you guys can see my screen now? Yes. Yeah. So, what Yunus has been talking about is again, जैसे हम कल बात कर रहे थे ITSM, ITIL के बारे में, अभी तक सर्विस नाउ की बात नहीं की है हमने. Similarly, what Yunus was talking about is mainly two things. I would call them, one is called SDLC, Software Development Life Cycle. Software Development Life Cycle, and it is important for you to know this and realize this, क्योंकि खाली अगर आपको सर्विस नाउ आ जाएगा तो आप अकेले काम कर सकते हो. ठीक है, सर्विस नाउ आपको आता है, आप अकेले काम कर सकते हो, बट अकेले काम करने जैसा तो ये है नहीं, अलग अलग चीजें करनी पड़ती हैं. राइट, व्हेन वी टॉक्ड अबाउट डिफरेंट रोल्स. राइट, ये इतनी बड़ी चीज है या इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज है कि ये एक पर्सन अकेला नहीं कर सकता. सो यू हैव टू हैव अ टीम, एंड वंस यू हैव अ टीम, यू हैव टू हैव अ प्रोसेस. की जैसे एक ड्रामा है, थिएटर है,
जहाँ पे हर एक आदमी का एक रोल दिया हुआ है कि भैया तू लेफ्ट से एंट्री मारेगा, ये 5 डायलॉग करेगा, उसके बाद ये यहाँ से आएगी, ये 10 डायलॉग बोलेगी, उस तरह से ये रोल बने हुए हैं. सो ऑल दैट रोल डेफिनेशन एंड ऑल दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, SDLC. SDLC में दो मेजर क्या बोलते हैं टाइप्स हैं. ओके, सो वन इज कॉल्ड वाटरफॉल and the other is called agile. So what Yunus has been explaining or talking about today is the agile methodology, right? ServiceNow and these kind of projects में agile methodology ज्यादातर यूज होती है, right? But that is not the only methodology. There is a waterfall methodology also. Waterfall methodology कैसे क्या होता है? You imagine अपने माइंड में एक वाटरफॉल इमेजिन करो, राइट? तो यहां से पानी आ रहा है, इस कंटेनर में पूरा भर जाएगा तो फिर यहां जाएगा, यहां भर जाएगा फिर यहां जाएगा, यहां भर जाएगा फिर यहां जाएगा, राइट? तो वाटरफॉल मेथोडोलॉजी में क्या होता है? सबसे पहला फेज होगा डिजाइन, फिर होगा डेवलपमेंट, फिर होगा टेस्टिंग, फिर होगा डिप्लॉयमेंट एंड सो ऑन सो फोर्थ. दिस इज वाटरफॉल मॉडल. एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसे होता है. सो इज वाटरफॉल गुड और बैड? ऐसा कुछ गुड और बैड नहीं है. एवरीथिंग इज गुड और बैड डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन. सो मे बी एकदम ही नया नया प्रोजेक्ट है, नया क्लाइंट है, राइट? उनके पास सर्विस नाउ है ही नहीं, उनके पास कंप्यूटर्स भी नहीं है, उनके पास क्लाउड अकाउंट भी नहीं है. तो वहां स्टेप बाय स्टेप अगर चलना है तो इन माय ओपिनियन में भी वाटरफॉल में भी बेटर कि पूरा इनिशियल सेटअप हो गया, ये वो वाटरफॉल में जाके डिप्लॉयमेंट हो गया. उसके बाद उसका आपको मेंटेन करना है, रोज छोटा मोटा काम आता रहेगा. सो मे बी एजाइल माइट बी बेटर. उसका नाम ही है एजाइल. एजाइल मतलब क्विक, एजाइल मतलब जल्दी जल्दी, एजाइल मतलब फ्लेक्सिबल. तो ये जो अभी यूनुस ने बात की, दैट इज सम की टर्मिनोलॉजीज फ्रॉम द एजाइल मेथोडोलॉजी. एजाइल मेथोडोलॉजी में दो की कॉन्सेप्ट है. वन इज कॉल्ड स्टोरी, ओके, एंड द अदर इज कॉल्ड स्क्रम. तो वाटरफॉल जो रिक्वायरमेंट होता है, जो ट्रेडिशनल डेवलपमेंट का लाइफ साइकिल होता है, उसके अंदर हम एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं बड़ा वाला. इट इज कॉल्ड रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट. रिक्वायरमेंट तो ये ऐसा एक स्टेप हो गया. रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट पूरा बन जाएगा, उसके बाद फिर हाई लेवल डिजाइन होगा. हाई लेवल डिजाइन पूरा हो जाएगा, फिर उसका लो लेवल डिजाइन होगा. लो लेवल डिजाइन पूरा हो जाएगा तो फिर उसका डेवलपमेंट होगा. ऐसे स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन करते हैं, राइट? स्टोरी में क्या होता है और या एजाइल में क्या होता है, ऐसा पूरा बड़ा रिक्वायरमेंट लिख के फिर HLD लिख के फिर LLD लिख के ऐसा नहीं करते हैं. ओके, यू राइट अ स्टोरी. स्टोरी मतलब एज द नेम सजेस्ट कि यूनुस ने जो एग्जांपल दिया कि ये फील्ड यहां से उठा के वहां कर दो, दैट इज नॉट द स्टोरी. द स्टोरी इज कौन आएगा, मतलब कौन सा यूजर आएगा. जर्मनी के यूजर आएंगे या जो VIP यूजर होंगे वो आएंगे, वो लॉग इन करेंगे, फिर जब वो यहाँ जाएंगे तो उनको ये फील्ड यहाँ से नहीं वहां दिखेगा. ये स्टोरी हो गई, राइट? तो ऐसे जो होते हैं, कौन सी स्टोरीज इंप्लीमेंट करनी है हमको, ऐसी बड़ी लिस्ट होगी ना. अभी जैसे यूनुस ने बोला 1000 यूजर हैं, तो 1000 यूजर को अलग अलग चीजें चाहिए होगी. तो आपने मान लो 15-20 स्टोरी लिखी हुई है, राइट? तो 15-20 स्टोरी लिखी हुई है ऑन अ स्टोरी बोर्ड. तो जब ये स्क्रम मीटिंग होगी, स्क्रम स्क्रम कैसे आया है वर्ड? आपने क्रिकेट में देखा होगा कि मैच शुरू होने के पहले कैप्टन और सारी टीम एक सर्कल में खड़े होके एक दूसरे के कंधे पे हाथ रख के बात करते हैं. देखा है कि नहीं देखा? यस नो, कोई तो बोल दो. हाँ देखो. राइट? तो ये चीज क्रिकेट में बाद में आई है. पहले ये वाली चीज होती थी रग्बी में. रग्बी में मैच या कोई भी प्ले स्टार्ट होने के पहले सारी टीम एक साथ आके कंधे पे हाथ रख के सर्कल में बैठ के अपनी स्ट्रेटेजी डिस्कस करती है कि करना क्या है, ये करना है, वो करना है. फिर एक दूसरे को एनकरेज करके ताली बजा के अपनी अपनी पोजीशन पे जाके गेम चालू करते हैं. क्रिकेट में भी आजकल यही होता है, राइट? टाइम आउट के बाद या कभी हर ओवर के बाद तो नहीं, बट टाइम आउट के बाद या ब्रेक के बाद सारी टीम एक साथ आती है, स्क्रम करती है, दे गेट चार्ज्ड अप एंड देन दे गो आउट एंड प्ले. सो दैट इज अ स्क्रम.
तो वही कॉन्सेप्ट एजाइल में भी लिया है। तो स्क्रम में क्या करते हैं, स्क्रम मास्टर इज लाइक द कैप्टन, बाकी सब प्लेयर एक साथ आते हैं, स्टोरी बैकलॉग में देखते हैं क्या क्या यूजर ने या हमारे क्लाइंट ने क्या क्या चीजें मांगी हैं, तो उसमें से कौन सी चीज हम आज कर सकते हैं या इस हफ्ते में कौन सी चीज कर सकते हैं, बिकॉज कंस्ट्रेंट्स होते हैं, सारी की सारी चीज नहीं कर सकते, उतनी बड़ी टीम नहीं है, या डिपेंडेंसी है कि भैया ये स्टोरी नंबर 5 करने के लिए पहले स्टोरी नंबर 2 करना पड़ेगा, कि सब कंपनी ऐड करने के पहले आपको वो डेटाबेस से एपीआई लेके कनेक्ट करना पड़ेगा कि कहां से वो सब कंपनी की लिस्ट आएगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो दिस इज योर क्या बोलते हैं, आई एम सॉरी, लेट मी स्टॉप शेयर, कंप्यूटर इज एक्टिंग अप। सो स्क्रम इज प्रायोरिटाइजिंग कौन सी स्टोरी हमें लेनी है ये हफ्ते में या 2 हफ्ते में। स्क्रम होता है, स्प्रिंट होता है, तो हम अगले 2 हफ्ते में क्या करने वाले हैं। जैसे क्रिकेट में हम कहते हैं कि अभी लंच टाइम से लेकर टी टाइम तक हम क्या करने वाले हैं, हमारी स्ट्रैटेजी क्या है। उसी तरह जो पूरी एजाइल टीम होगी वो साथ में आती है, बोलती है कि 2 हफ्ते का स्प्रिंट है, तो ये स्प्रिंट में हम क्या करने वाले हैं, ये स्प्रिंट में हम ये 3 स्टोरी लेने वाले हैं। ये 3 स्टोरी क्यों लेने वाले हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया टीम का कंस्टेंट होता है, या डिपेंडेंसी होती है कि ये वाली स्टोरी हम कर ही नहीं सकते जब तक ये नहीं बन जाए, और वो नहीं कर सकते जब तक वो बन जाए। तो इस तरह से स्टोरी लेते हैं और फिर एवरीबडी गेट्स टू वर्क। एंड एवरी डे जो कॉल होता है, राइट, वो इसीलिए कॉल होता है, टीम लीडर एंड स्क्रम मास्टर लेते हैं कि सब लोग अपने अपने चले गए अपनी अपनी पोजीशन पे, कोई शॉर्ट लेग पे चला गया, कोई स्लिप में चला गया, कोई फाइन लेग पे चला गया, राइट, स्टोरी ले लेके अपना अपना काम कर रहे हैं। तो एवरी डे यू सिंक अप कि कहाँ पे काम हुआ कि नहीं हुआ, कहाँ पे अटके हुए हो, राइट। शुभम विल से, नहीं बॉस, आई कांट प्रोसीड विथ माय स्टोरी टिल आसिया और Fatima finishes her thing and all that. So that is how your software development life cycle works. And the last thing that I want to say is the various roles. तो उसमें यूनुस आप जो कह रहे थे बीए का, राइट, तो Yes. बीए बिजनेस नहीं लेके आता है, राइट, वो सेल्स का काम है। बीए बिजनेस Okay. रिक्वायरमेंट लेके आता है, नई नई रिक्वायरमेंट लेके आता है। ओके, अभी जैसे राइज अप इंडिया का बिजनेस को क्लाइंट मिल गया है, टी मोबाइल या एटीएनटी, तो एटीएनटी से जो मैंने बताया स्टोरीज आती हैं कि ये कर दो वो कर दो, वो कैसे आती है, राइट। या तो एटीएनटी खुद बोलता है, खुद बोलता है तो किसको बोलता है, देयर शुड बी वन पर्सन, ऐसा नहीं है कि हवा में कहीं छोड़ दिया तो अपने आप हो जाएगा। सो दैट करेक्ट पर्सन टू टॉक टू कि मुझे ये रिक्वायरमेंट है इज बिजनेस एनालिस्ट, या फिर बिजनेस एनालिस्ट खुद जाके यूजर्स के पास बैठता है और बोलता है कि ठीक है, आपकी कंपनी ने अभी सर्विस नाउ लगा लिया है, आपको कोई तकलीफ है क्या, आपको कोई रिक्वायरमेंट है क्या, मेरे पास टीम है, राइट, हम बना देंगे। बट नए क्लाइंट्स नहीं लेके आता है बिजनेस एनालिस्ट, नए क्लाइंट लाने का काम सेल्स का काम है। Okay. ओके, ठीक है, चलो बैक टू यू। अच्छा, let me share my screen again. Any doubt till here? रोल में किसी को कुछ प्रॉब्लम, इसका टीम लीड का, स्क्रम मास्टर, कंसल्टेंट, हेलो। एनीवन? हाँ, यस। तो अभी पीएचपी या फिर सीएमएस प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, तो डेवलपर जो यहाँ पे होगा वो जावास्क्रिप्ट की मैन्युअली कोडिंग करेगा, करेक्ट। एचटीएमएल में डिजाइन बनाएगा, ऐसा ही होगा ना? डेवलपर का मैंने अभी रोल बताया आपको, फॉर एग्जांपल कि डेवलपमेंट सारी चीजें सर्विस ना आउट ऑफ बॉक्स दे रहा है, इट्स ऑलरेडी आउट ऑफ बॉक्स फंक्शनलिटी, इंसिडेंट ऑलरेडी एप्लीकेशन रेडी हो चुका है, राइट। तो अब इंसिडेंट और क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि और एक इंसिडेंट एप्लीकेशन आप बनाओ सर्विस नाउ के लिए। द रिक्वायरमेंट मोस्टली कम टू द हैव अ डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन डिजाइन, इसके अंदर थोड़ा सा चेंजेस करना, ऑटोमेशन चेंज करना, फ्लो चेंज करना। इसमें अगर आप यहाँ पर इफ यू सी हियर, इफ आई चेंज इम्पैक्ट एंड अर्जेंसी, इट विल चेंज द प्रायोरिटी एज वेल। ऑटोमेशन है, ये ऑटोमेशन है, दिस काइंड ऑफ फंक्शनलिटी दे वांट कि ऑटोमेशन होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर कॉलर चेंज कर रहा हूँ,
ठीक है, तो यहाँ पर ये लोकेशन, उसका ईमेल आईडी यहाँ पर शो होना चाहिए। जकरिया वेयर ही फ्रॉम बिलोंग्स, की कौन से शहर से आता है, ईमेल आईडी क्या है उनका, ये सारी चीजें पॉपुलेट होना चाहिए। डेवलपर का काम होता है, डेवलपर वर्क ऑन दिस। की इन अपकमिंग सेशंस के हम ये भी फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करेंगे यहाँ पर इन रियल टाइम। ठीक है, ये डेवलपर का काम होता है। जैसे यहाँ पर 4 बटन दिए हुए हैं, फॉलो, अपडेट, रिजॉल्व, कि एक और बटन ऐड करना ना, उसको फंक्शनैलिटी देना। डिलीट अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ, रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। रिजॉल्व पे क्लिक करूँ, आई नो नीड टू गो हियर चेंज द स्टेटस टू रिजॉल्व, बटन से काम होगा। अपडेट करना है यहाँ पर, जैसे भी टेस्ट मैंने Yunus, let me come in for everyone's benefit कि सर्विस नाउ को जो टाइप के जो प्लेटफॉर्म है उनको कहा जाता है नो कोड या लो कोड प्लेटफॉर्म। करेक्ट। ओके, सो आइडियली नो कोड। तो मेरे को समझ में नहीं आया किसने क्वेश्चन पूछा था कि HTML में करना है, PHP में करना है, जावास्क्रिप्ट में करना है। आइडियली नहीं करना है, आइडियली नो कोड, यानी खाली आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है। ये तो फ्रंट एंड दिखा रहे हैं, शायद इसका एक बैक एंड भी होगा जहां पे जाके आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है, चेंजेस करना है, राइट? करेक्ट। बट दैट इज नो कोड। एकदम ही कुछ अतरंग रिक्वायरमेंट आ गई जो सर्विस नाउ में कभी है ही नहीं, सोचा ही नहीं है, तो शायद आपको कोई जावास्क्रिप्ट में स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी, बट दैट इज लो कोड। ऐसा नहीं है कि पूरा आप नया स्क्रीन लेके यू स्टार्ट विथ div हैश div एंड div के अंदर लिख रहे हो, वो नहीं होगा। ठीक है, Correct, correct. Because ServiceNow already providing all the essential or required जो applications है, जैसे incident है, problem है, thousands of intelligence software engineer work on this, कि इस पर ये functionality पे already they have worked on। इससे अलग अगर आपको कुछ थोड़ा सा, अगर आपके हिसाब से अगर कुछ आपको चेंजेस लाने हैं तो आप कर सकते हैं, बिकॉज ये फंक्शनैलिटी आउट ऑफ बॉक्स फंक्शनैलिटी इट वर्क्स रियली वेल, कि इसमें हमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं। ऑलरेडी दे हैव ServiceNow टीम हैज ऑलरेडी वर्कड, कि हमें इसको मतलब बदल नहीं सकते हम। और कुछ चेंजेस करने हैं, थोड़े से फील्ड्स ऐड करना है, थोड़ा सा हटा रहा है तो उसको हमें हाई करना है, सेलेक्ट ये अलग एक और ऐड करना है आपको, स्टेट वैल्यू, यू कैन डू दैट। अगर आपको इंसिडेंट एक और क्रिएट करना है, इनका पसंद नहीं आ रहा है, तो फिर आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा स्क्रैच से सारी चीजें। करेक्ट, आर यू गेटिंग मी शाहरुख? कि अगर आपको एक स्क्रैच से अगर इंप्लीमेंट करना कोई एप्लीकेशन, तो इम्प्लीमेंटर होता है वहां पर, कंसल्टेंट होता है, डेवलपर होते हैं, इट विल टेक मंथ्स और ईयर ऑफ टाइम, की बहुत टाइम लगता है पूरा स्क्रैच से एक एप्लीकेशन को क्रिएट करना। इट हैज ऑल द ऑटोमेशंस की फंक्शनलिटी है उसकी, ये सारी चीज स्क्रैच से स्टार्ट करने को एक टाइम लगता है, और एक अलग रिक्वायरमेंट होती है। इंसिडेंट तो क्रिएट कोई नहीं करेगा, ऑलरेडी इंसिडेंट इज देयर, प्रॉब्लम इज देयर, तो वो व्हाई शुड ही add one more incident application to his platform? ठीक है, दिस काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट आल्सो कम्स, कि हमें इंसिडेंट तो है, ठीक है, अभी हमें एक सर्विस फॉर आईफोन के लिए एक एप्लीकेशन क्रिएट करना है, कि सेल्स के लिए आईफोन सेल्स करना है, उसके मॉडल होने चाहिए, कितना सेल हो रहा है, उसका प्राइसिंग क्या है, एक एप्लीकेशन क्रिएट करना है फॉर एग्जाम्पल। वो इम्प्लीमेंट करेंगे स्क्रैच से, कि ऑटोमेशन क्या होना चाहिए, जब यहाँ पर हम ये सेलेक्ट करते हैं तो ये चेंजेस होने चाहिए, फिर ये आना चाहिए, वो होना चाहिए, फिर एक मैसेज अगर यहाँ पर सेंड करते हैं यूजर को तो सबको जाना चाहिए, इसके मैनेजर को जाना चाहिए, फिर ये कैटेगरी, ये सारी डिटेल्स, एक कंप्लीट ऑटोमेशन इज देयर, कि एक एप्लीकेशन बनता तो ऐसे नहीं कि सिर्फ फील्ड ऐड करके छोड़ दिया, देयर इज एन ऑटोमेशन। ठीक है, एक वर्कफ्लो होता है, उसके हिसाब से ये सारी चीजें काम होती हैं। व्हेनेवर यू ओपन एनी फॉर्म, तो ये एक जो है ना इंसिडेंट क्रिएट करता है, नंबर क्रिएट करता है। रिसर्च करूं अगर न्यू पर क्लिक करके, ये शशफाक, यू वांट टू ऐड समथिंग? So I just want to pitch an यस real यस world यस, example. Yeah. So many of you knows that earlier when it comes to setting up, your computer, you used to have a CPU monitor, correct? Now things has been changed. Now you see laptops and all, correct? Now and mobile phones are nothing but the computers only, small computers with different operating systems. Going beyond this, okay, if you want to upgrade your systems, you need basically a good CPU, RAM, storage, correct? And there is some limitations with this setup. If you want to have 5 TB of storage,
it's highly difficult. You have to have some external mechanism for this. If you need uh, i7, correct? CPU, if you want to expand it to 16 core or 24 core, it's highly difficult with the laptops and desktop kind of setup because they are not going to support this. Why I'm telling you this? Just to give an example, okay? You have heard cloud, correct? You know cloud, you know Azure, you know AWS, and all those are cloud services, which offers basically a service, okay, where you'll be able to meet your hardware requirement with respect to if you need 5 TB of storage, 32 MB or sorry GB of RAM or whatever maybe whatever number you want to, correct? Because it gives the platform, okay. What kind of platform? When I've spoken about laptops, desktop, these are physical systems, correct? Yes or no? Yes. But in case of cloud, those systems are virtual ones. And how it is managed? Anybody of you have gone and created an instance on Azure or AWS in the past? Yes, Anybody? yes. So how you are doing that? वहाँ पे सब रिक्वायरमेंट डालने पड़ते थे, यानी रैम कितने चाहिए और Correct. इंटरनल मेमोरी But कितने the, चाहिए, फ्लैट system is automatically created, correct? हाँ हाँ Means it is just a click away. Once you'll provide the information, I need 24 cores virtual machine, correct? With 5 TB of storage, 48 GB of RAM, and you can select operating system, you can select database, whatever you want, correct? Or whatever additional services you need. So it is just on a click away, correct? In earlier case, administrator used to sit for 15 hours, 16 hours just to set up the system, and that is also not a perfect, because what used to happen, I have to basically, once you'll install the basically server, then you have to install patches related to your application. If you are installing database, you have to install patches related to database. Then you have to configure the connection. Nowadays, on Amazon, AWS or Azure, it's just on a single click you'll be able, and you'll get whatever backend services required with respect to databases, with respect to applications. There are inbuilt applications, correct? Many of you are not kind of using those services, but since we have used, we know, and Shahrukh knows because he has also used AWS instance in the past, if I'm not wrong, correct? Or Azure instance in the past. yes Where ServiceNow helps basically, and whatever I said right now, automation, correct? And Shahrukh also have done this, okay? Mainly to automate your service request along with DevOps, ServiceNow can be used. How it is? You just go. There are templates which can be created, okay, for your virtual machines, servers, whatever for IT needs, correct? You can just go click on that particular service request. System will do a backend job, and you will get the system either through and how it is effective. You can just go select your platform as well. So the level of automation we can do. आपको Amazon या AWS पे एक वर्चुअल इंस्टेंस चाहिए विद XYZ कॉन्फ़िगरेशन, या Azure पे चाहिए सर्विस मैनेजमेंट टूल लाइक ITSM टूल लाइक ServiceNow कैन बी यूज्ड. आप वहां पे आपका एक वर्कफ्लो क्रिएट करो, ओके? दैट वर्कफ्लो, what will happen, as Yunus said, it will kick in basically an approval process. मीन्स कैसे है कि अगर समझ लो आप, नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि मैं इतना हैवी मशीन पर तो मेरे जो भी मैं सब्सक्रिप्शन है फीस पे करनी पड़ेगी, और कोई भी करेगा तो
nobody will have any control. सर्विस नाउ फॉर्मलाइज दिस प्रोसेस. समझ लो मैं इंडिपेंडेंटली कंपनी का मालिक को मैं जाके अपना अपना सिस्टम क्रिएट कर रहा हूँ, दैट्स ओके, बिकॉज आई नो इट कि मैं ये सिस्टम का इतना कॉस्ट है, 25,000 रेंट है, 50,000 रेंट है महीना, 1 लाख रुपए रेंट है. इंडिपेंडेंटली आई नो, बट you have an employee base of around 100, 200, 500, 1,000, 10,000. Abhi anybody can go and create virtual machine, go and create any instance, है ना, on Azure or AWS. How what will happen? आप अगर ऐसे कोई भी जाके क्रिएट कर सकता है, सबको राइट्स है, तो क्या हो जाएगा, कंपनी का बंटाधार हो जाएगा, क्योंकि सब लोग है ना अपने अपने हिसाब से सिस्टम क्रिएट करेंगे. देयर विल नॉट बी एनी कंट्रोल ऑन कॉस्ट. मींस आपको सिस्टम तो चाहिए, एज अ डेवलपर यू नीड सिस्टम फॉर योर डेवलपमेंट with XYZ configuration. As I said, some developer will need database systems, some developer will need a base, so which might not be database exactly. They might need SharePoint instances. Somebody might need an M365 instances. But at the same time, ये तो need है, without that you cannot work, correct? If you don't have that system, you cannot work, because those are the platforms used for your development needs. And if anybody has an access, anybody and everybody will have access, there will be a basically impact on cost, because कोई भी जाके अपने मन से है ना, कोई भी, it's like going in a shop, okay, mobile shop, और जाके आप उठा लो, कोई आपको पूछने वाला नहीं कि इसका कॉस्ट कितना है. ऐसे दुकान चलेगी कि अगर कोई आदमी ने दुकान खोल के बैठा है और उसके पास सब ब्रांड्स है, और जो चाहे बंदा जाके मन से फोन उठा के लेके आए, पैसा ना पे करे, तो दुकान चलेगी क्या, नहीं चलेगी, करेक्ट? हाउ बेसिकली दैट शॉप विल बी एन ऑपरेटिंग. बेसिकली आप जाओगे, वो आपको दिखाएगा ये फोन है, या आपको समझ लो दिखाएगा भी नहीं, सेल्फ सर्विस है. टेक एन एग्जांपल, आप जाओगे, देखोगे, इसका कॉस्ट देखोगे, वो कॉस्ट पे करोगे, तभी आपको अलाउ करेगा कि आप ये फोन उठा के लेके जाओ, करेक्ट? सिंपल. आपका कोई भी शॉप में जाओगे, कोई होटल में जाओगे, आप मेन्यू देखोगे, मेन्यू में जाके सेलेक्ट करोगे कि मुझे चाय चाहिए, कॉफी चाहिए, सैंडविच चाहिए, है ना, और या बिरयानी चाहिए, या आपको है ना दाल चावल चाहिए, वॉट एवर इट मे बी, एग्जाम्पल करके. तो आप जाओगे, मेन्यू सिलेक्ट करोगे, मेन्यू सिलेक्ट करने के बाद आप कॉस्ट उसका जो है वो बेयर करोगे और निकल आओगे. दैट्स द प्रोसेस, करेक्ट? आप अगर, और एक ये जस्ट बता रहा हूँ, जस्ट टू मेक श्योर दैट, तो जब भी आप कोई भी ऑटोमेशन यूज कर रहे हो, ओके, ऑटोमेशन में बहुत सारे वर्क फ्लोज यूज किए जाते हैं. तो ITSM टूल का, सर्विस नाउ के जैसे टूल का, सबसे ब्यूटी ऑफ दिस टूल इज बेसिकली इट हेल्प्स इन ऑटोमेटिंग लॉट ऑफ थिंग्स, स्पेसिफिकली डेवऑप्स एरिया जो मैं आपको बता रहा हूँ. यहाँ पे जब भी सिस्टम्स लगेगा, एनी सिस्टम, एनी वर्चुअल मशीन, यू कैन ऑटोमेट दैट वर्क फ्लो. जो वर्क फ्लो आप इनिशिएट करोगे एज ए एंड यूजर, जो आप यूज करने वाले हो, बट देर इज अ मैकेनिज्म विच है ना किक्स इन बेसिकली अप्रूवल्स एट ईच लेवल. तो अगर आपका कोई भी सिस्टम एसेट है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक एसेट है, कंप्यूटर एक एसेट है, वर्चुअल मशीन एक एसेट है, ऑपरेटिंग एक एसेट है, तो ये सबका अप्रूवल देयर इज समबडी सिटिंग ऑन टॉप ऑफ यू, है ना. आप अगर नॉर्मल प्रोसेस से जाओगे, क्या करोगे, आप लिखोगे मेल, फिर मेल पे अप्रूवल होगे, फिर नेक्स्ट मेल के ऊपर अप्रूवल जाएगा, करेक्ट? इट विल टेक एजेस, एंड आपको पता नहीं चलेगा कि कब कौन अप्रूव कर रहा है. So there are two scenarios. Sorry, थोड़ा I'm taking long, Yunus. No तो worries. देखो, टिपिकल सिनेरियो, आपको एक सिस्टम चाहिए आपके नीड के लिए. अगर ट्रेडिशनल तरीके से जाओगे तो क्या करोगे, आप पहले अपने मैनेजर को मेल लिखोगे, करेक्ट? मैनेजर को अथॉरिटी रहेगा कि नहीं पता नहीं है, तो उसके अगला मैनेजर के पास हो जाएगा, बिकॉज एवरीथिंग एंड्स अप एट बजट. और पैसे के जहां पे पैसा चाहिए वहां पे अप्रूवल जो है नेक्स्ट लेवल तक जाता है. इट मे गो अप टू CTO और CEO समटाइम्स, करेक्ट? क्योंकि ये प्रोसेस है, जैसे यूनुस बता रहे थे, आप डेवलपर है, आपका लीड है, लीड के ऊपर प्रोग्राम मैनेजर है, प्रोजेक्ट मैनेजर हो सकता है, या सर्विस डिलीवरी मैनेजर है, डिलीवरी मैनेजर हो सकता है, उसके आगे आपका सर्विस डिलीवरी दूसरा कोई हेड ऑफ फंक्शंस हो सकता है.
सकता है या सीपीओ हो सकता है, उसके आगे सीईओ हो सकता है. देयर आर मल्टीपल अप्रूवल्स रिक्वायर्ड. इन ट्रेडिशनल वे आप जब भी कोई सिस्टम दे रहोगे तो समझ लो मैंने लीड को मेल लिखा, लीड ने मेरे को अप्रूवल 2 दिन में दिया. लीड के बाद में मैनेजर को उसने लिखा, उसने और 2-3 दिन ले लिया. उसके आगे आपका हेड ऑफ फंक्शन है उसको. तो ये प्रोसेस में आप देखो ये मैन्युअल प्रोसेस है ना. चाहिए प्रोसेस इज बीइंग फॉलोड. इन अदर केस जैसे मैंने मोबाइल का क्या एग्जांपल दिया, आप जाओ उठा के लेके आओ, पैसा मत दे. दैट्स नॉट द थिंग विच इज हैपनिंग इन रियलिटी. करेक्ट. सबको एक प्रोसेस है, जहाँ पे जाओगे शॉप में पैसा दोगे वहां बाहर निकलोगे. टिपिकली इन आईटी इंडस्ट्री वैसे नहीं चलता है. कोई भी आईटी इंडस्ट्री, कोई रिटेल इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, सब जगह पे कोई भी आपको एसेट चाहिए या कोई भी आपको सिस्टम चाहिए तो उसके लिए है ना प्रोसेस सेट किया. अभी यही प्रोसेस को फॉर्मलाइज कैसे करेंगे उस पर मैं आऊंगा. तो एग्जाम्पल जो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे हर एक स्टेज में मेल लेके अप्रूवल ले रहे कि मैनेजर 1 हैज अप्रूव्ड, उसका मैनेजर ने अप्रूव किया, मैनेजर का मैनेजर ने अप्रूव किया, मैनेजर के मैनेजर ने अप्रूव किया, फिर सीटीओ ने अप्रूव. करेक्ट. संजीत ने एक एग्जांपल दिया था पास में, उसका ट्रैवल रिक्वायरमेंट कि उसने एक सर्विस रिक्वेस्ट रेज किया कि ही हैज टू ट्रैवल फ्रॉम पुणे टू लंदन. तो ही हैज यूज्ड सम टूल. वहां पे भी ये सब टाइप के प्रोसेस रहता है. संजीत का मैनेजर, उसका मैनेजर का मैनेजर, ऐसे अप्रूवल चलता है. और कॉस्ट ज्यादा है तो सीईओ तक. अभी इस ओवरऑल एग्जांपल में इशू क्या है मुझे आप बता सकते हो इस सब में? टाइम बहुत लग रहा है. हेलो. टाइम बहुत लग रहा है. किसकी वजह से टाइम लग रहा है? ये अप्रूवल की वजह से. अच्छा, अभी इस टाइम को हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, कम कैसे कर सकते हैं? प्री अप्रूवल दे सकते हैं स्टैंडर्ड चेन के अंदर या ऐसे करके. और दूसरा, ताकि शुभम, तन्मय, I wanted to hear We can I want to automate see automate the uh-huh. process with Yeah. configurations. Okay, little closer, not exactly what I'm expecting. Ayan, are you there? Ayan, are you there? Yes. So how can we automate or how can you improve? Because Shahrukh has kind of given a kind of answer which is closely matching. It takes time, more time comparatively. Because it's a manual process. Every time you have to go and take an approval from different managers. Anybody else? Tanmay or Shreyas? Simultaneous approvals need to be approved. No, that's not the solution, unfortunately. Because it's a cycle, correct? Your managers and manager cannot approve until your manager approves, correct? So simultaneous approval is not possible. It's a sequential process. And wherever there is a sequential process, there itself, I think we can use ServiceNow like tools. So see, there is a process which is a manual process, but it is not standardized, correct? We did spoke about SLA, correct? Do you remember? आप SLA हमने last week discuss किए थे. In fact, I think we have discussed this on Monday as well, if I'm not wrong. SLA क्या होता है? पहले से कुछ एग्रीमेंट करते हैं हम सर्विस लेवल. नहीं, Saqib, yeah, okay. Saqib, in this case, what will be the SLA? Saqib, are you there? Yes, but I'm not getting the SLA, service level agreement. So
SLA is basically मीटिंग के 2 घंटे में ये प्रॉब्लम है ना इशू रिजॉल्व होगा या 1 घंटे में होगा। कल जैसे संजीत सान ने भी एग्जांपल दिया था, एक्नॉलेजमेंट का एक है ना SLA होता है, ये 10 मिनट में आप टिकट एक्नॉलेज करोगे, करेक्ट। जो भी कुछ आपका इश्यूज है आप रिपोर्ट करोगे। फॉर एग्जांपल मेरा लैपटॉप नहीं चल रहा है, इफ यू आर रिपोर्टिंग इट थ्रू फोन, आपका हेल्प डेस्क वाला फोन से आपको कॉल करेगा और टिकट नंबर दे देगा, दैट इज एन एक्नॉलेजमेंट। व्हेन यू आर रिपोर्टिंग इट थ्रू मेल, that time also within 10 minutes they have to report it. If you are reporting it through tool, that time also they have to acknowledge it. So there is a SLA for acknowledgement. What is that SLA? Within 10 minutes somebody has to create a ticket and acknowledge that issue, correct? So SLA in this case, how it will help, it will help basically each level, जब भी मैनेजर आपका अप्रूवल कर रहा है या अप्रूव करेगा या रिजेक्ट करेगा, बट विद इन 2 hours he has to approve or reject. For example, his manager should approve or reject this request within 4 hours, correct? So at each level there will be SLA. At each level there will be, means मेरा मैनेजर का SLA क्या 2 घंटे में अप्रूव करना, उसका मैनेजर का अप्रूव SLA क्या हो सकता है 4 घंटे, उसका मैनेजर का 1 दिन का हो सकता है, because he might be receiving hundreds of such requests, correct? Are you getting me? तो इसमें क्या होगा, एक आपको कमिटमेंट होगी, एंड ये कमिटमेंट कहां से आएगी, ये प्रोसेस से आएगी, करेक्ट? और ये प्रोसेस कहां पे हम कॉन्फ़िगर करोगे, a tool like service management tool like ServiceNow, यहाँ पे हम workflow कॉन्फ़िगर करें, and you can use any such tools, not limited to ServiceNow. I just wanted to speak about process part. तो ServiceNow का एग्जांपल मुझे क्यों याद आया, क्योंकि डेवऑप्स में ServiceNow बहुत इफेक्टिवली यूज होता है और वहां पे भी ये वर्कफ्लो किक इन होता है। फॉर एग्जांपल, तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हाउ इट विल बेनिफिट गाइस, अभी मुझे आप कोई बताओ इसमें से कि अगर पहले केस में मेल्स पे अप्रूवल आता था और मेल जब मैनेजर देखेगा तब अप्रूव करेगा, और उसको कोई अपनी ओनरशिप नहीं थी, अप्रूव करे या ना करे, वो महीना भी अप्रूव नहीं करेगा, 2 महीने भी नहीं करेगा, 3 महीने भी अप्रूव नहीं करेगा। बट इन दिस केस व्हाट विल हैपन, वन कंसेप्ट संजीत हैज स्पोकन अबाउट इट, करेक्ट? समझो इस मैनेजर का, मेरा मैनेजर 2 घंटे में अप्रूव नहीं करेगा तो क्या होगा, वो पेनल्टी इन लगेगी, केस Escalation. एस्केलेशन हो जाएगा। ओके, बट एस्केलेशन से पहले कुछ है ना, एक टर्मिनोलॉजी हमने बताया थी, ब्रिज। ब्रीच, करेक्ट। हाँ, तो आपका 2 घंटे का कमिटमेंट है, फॉर एग्जांपल कोई अप्रूवल का, अगर नहीं करते हो तो व्हाट विल हैपन, ब्रीच ऑफ SLA। आप पहले SLA समझोगे, मुझे बताओ सबसे पहले, एवरीबडी अंडरस्टूड SLA? मैं वापस आई एम गोइंग बैक टू बेसिकली योर टाटा स्काई एग्जांपल, करेक्ट? तो टाटा स्काई एग्जांपल में मैंने बताया था कि वो 24 आवर्स में आके आपका टाटा स्काई रिपेयर करके जाएगा, करेक्ट? नहीं गया तो क्या हो जाएगा, SLA ब्रीच हो जाएगा। तो व्हाट इज 24 आवर्स इन टाटा स्काई केस? कैन यू कम अप गाइस, व्हाट इज 24 आवर्स इन टाटा स्काई केस? एक टाइमलाइन विंडो है, उसके अंदर ही काम करना है। Correct. That window is SLA. Once again, I'm repeating it for all of us. Service level agreement is nothing but the time frame, agreed time frame, that can be for acknowledging or resolving the issues. Correct. There are 2 examples I've taken today. One is acknowledgement. That acknowledgement is basically they are providing you the ticket, that whenever you're calling any ticket is an acknowledgement, and fixing the issue is basically resolution, correct? So there are 2 types of SLAs. One is acknowledgement and second thing is issue resolution, correct? So are you clear guys? वापस रिपीट कर रहा हूं मैं, हमने क्या क्या सुना अभी?
So how effectively ServiceNow can be used? Okay, in case of automation, because Yunus was talking about automation, and in case of automation, uh, even if you are using automation, there will be what are the benefits? एक तो आपका time reduce होगा because you will have SLA. Second thing, आपको वेट करना नहीं पड़ेगा, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा उसका मैनेजर कौन है. दैट्स अनदर बेनिफिट ऑफ है ना सेटिंग दिस इन प्रोसेस और setting process in any automation tools. So जैसे आप अभी प्रीवियस केस में आपका मैनेजर उसका मैनेजर उसके मैनेजर को लिखता था, उसके मैनेजर को लिखता था. बट इफ यू आर कॉन्फ़िगरिंग दिस इन प्रोसेस, बाय डिफॉल्ट जितने भी पार्टिसिपेंट्स है इस प्रोसेस के सबको वो वर्कफ्लो जाएगा वन बाय वन. इफ approver 1 approves, then it goes to approver 2, then it goes to approver 3, it goes to approver 4, it goes to approver 5. और finally वो ticket close होगा. It's not necessary that all approvals will approve this. Somebody will reject it as well, correct? But it actually kind of helps in closing the tickets either by approving, either by rejecting, correct? Based on eligibility, they might approve or reject. बट ये चीजें स्ट्रीमलाइन हो जाएगी और उसको डेफिनेटिव टाइमलाइन आ जाएगा. करेक्ट. ओ टू यू सॉरी संजीत, do you want to put anything? I think I took almost 10 minutes to explain this. I know I want to so let Yunus finish logically where he wanted to finish. If we still have time, then I want to tell an interesting story about SLAs and all of that. If we don't have time today, I'll tell the story tomorrow. No. I have almost done, but there are 2 more roles. We will explain it tomorrow. But as we started with the user interface of ServiceNow, I want to tell you what is this called actually. This is a filter navigator. This is called a filter navigator. You might have know this option. You can okay. Everyone has this type of screen, like right? Yesterday, I think Asim shared me the screenshot. When you click on all applications, you will have this kind of, the navigator will come up. कि आएगा फिर इसके बाद में if you pin all menu, it will give you like this taskbar. एक side frame होगा. Okay, if you unpin it, you can have all the screen to use it here. ठीक है. और इसको कहते हैं filter navigator. क्या कहते हैं? It is called a filter navigator. From here you can search any application or any module like incident, okay, and problem, okay, and change. Application you can see from your service catalog. You can see here. And this is called a banner frame. Favorite, history, workspace, admin, and the environment, the environment name. And here it is a scope, the application that you are working on, the update set. We are going to discuss on these function and modules as well in upcoming sessions. And here you have your profile. It will show your role. You are a system administrator, preferences, profile, impersonate. What is impersonate? We will have a session on this. Elevate the role. What are these function and what are these stand for? We will have a discussion on this. So, and this is the content frame. What is this content frame? This box called a content frame, and this is a banner frame, and this is called a filter navigator. What it is called for? This Saqib? Filter navigator. Correct. And this one, the upper banner, it is called a banner frame, and this content frame. So this also can be called something else, guys. I think. What is that? On the left side. Any other word? Any other word? It's a one type of bar. We can say a sidebar or something like that. But it's a Sidebar filter or navigator. In ServiceNow, it is called filter. Catalog as well, correct? For ServiceNow, correct? If I'm not wrong. So if you have basically a menus in front of the service catalog item for
for example, for creating a service request workflow, you are going to use this menu, correct? Yunus, Yes, all are yes. These are the catalogs yeah, from the ServiceNow out of box catalogs. तो ये exactly. हमें So अभी these we are the have to catalog visit. actually. We have to visit every day here multiple times, so we should keep remember the Yeah. names. कि ये filter navigator है, ये banner frame है और ये content frame है. ठीक है, समझ में आ गया इस चीज में? कोई किसी को डाउट वगैरह है? Nope. Okay, over to you, Sanjit. We will No, I'm continue done. the conversation. Let's come to a logical close of this session. So कल क्या करने वाले हैं? कल के लिए कुछ बैकग्राउंड मटेरियल प्रिपेयर करना है, प्री रीड करना है, वो बता दो, and then Yes, I'll share in the group. I have some assessment for the everyone, ठीक. so I need to complete that. I'll share in the group. Okay, WhatsApp group after some time. Any questions? Yeah, Any doubt? Any adults till now, guys? Anyone? कुछ डाउट है आज के जो रूल्स के ऊपर में जो हमने बात किया, सर्विस नाउ इंस्टेंस के बारे में बात किया, कुछ डाउट्स वगैरह हैं इसमें आपको? They will have a more deep discussion on this. Like admin, we haven't take the admin because nowadays admin के special requirement नहीं होती है project में, because every project owner, team lead wants to be his team member should be all rounder, not only the bowler or a batsman or a fielder. He should have all the three fields expertise in it. कि service now developer को admin का भी काम आना चाहिए, because to save the budget of the project कि सिर्फ admin को लेंगे, admin वाले को admin का ही काम आना चाहिए, उसको developer. No jobs in the market, very low jobs in the for the admin role in India. अगर आप नौकरी पे डालोगे कि एडमिन के लिए कितने जॉब्स हैं, तो यू विल फाइंड वेरी लेस जॉब. बट डेवलपर्स यू हैव अ प्लेंटी ऑफ जॉब्स. जहां पर 100 रिक्वायरमेंट्स हैं, तो वहां पर आपको 5 to 10 रिक्वायरमेंट्स ओनली एडमिन की मिलेंगी. लेकिन जो डेवलपर होते हैं, दे हैव डन देयर सीएसए की एडमिन का कोर्स किया, तो उन्हें डेवलपमेंट एज वेल एज के एडमिन का भी नॉलेज है. बट इन अदर कंट्रीज अपार्ट फ्रॉम इंडिया, इन यूएसए, सम ऑफ माय फ्रेंड्स आर देयर, दे आर वर्किंग एज admin from admin का CSA का कोर्स किया उन्होंने, and they got a job as admin in good companies. कि वो admin का ही कोर्स करके, सिर्फ admin का क्या रोल है, we will have a more discussion on it tomorrow कि क्या काम होता है admin का. तो admin का एक कोर्स करके, सर्टिफिकेट करके, नॉलेज गेन करके admin का एक जॉब मिल सकता है. यूएस में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती है, लेकिन इंडिया में देयर आर वेरी लेस. हर अपॉर्चुनिटी जो आती है कंपनी की, जो जेडी आते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन के, एम्प्लॉय शुड बी डेवलपर, एडमिन और सीएसएम का नॉलेज होना चाहिए, आईटीएसएम का नॉलेज होना चाहिए, सर्विस शुड बी ऑलराउंडर. की हमें एक चीज के लिए फिर और दूसरे को हायर करने की जरूरत नहीं पड़ी. अगर इसको सब आता है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेस्कटॉप, मोबाइल का, तो ये ही कैन डू एवरीथिंग. कि एक पर्टिकुलर एक चीज के लिए हमें एक न्यू हायर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इट विल इंक्रीज इफ दे ऐड एनी न्यू मेंबर टू द टीम, इट विल इंक्रीज द बजट ऑफ प्रोजेक्ट, राइट? तो सब अगर आता है तो हमें एक न्यू हायर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. These are some points wanted And to add. one more thing, why in US they want admin separately and developer separately? Any guesses, guys? India versus US example. Tanmay, Shreyas, can you just put some light? You've been there, correct? Why there are separate admins and developer in US, while in India, developer and admins are a single role? I'm not sure. Anything from you, Shreyas? Like I didn't get your question. Can you repeat? So why there are two roles in for admin and developer, and why there is only one role, as Yunus stated? In India, they expect admin and developer together as a one person. Yeah. But in US, they need those team members as a separate person, correct? The individual resource. Why? I'm not sure. So what happens typically in India? We have habit, correct? We have multi-skill resources, and also sometimes we bypass the process, correct?
very much needed. But still, due to say some cost constraint, due to some budget constraints, हम developer और admin एक ही रखते हैं. But typically in Western world, okay, they won't prefer. And there is another reason for it. One is basically security, and the second thing is basically role-based access controls. Correct? They have a concept called role-based access control. So if you are acting as a system administrator, you will be acting as a system administrator. You will not be working and given a role of developer. If you are going to work as a developer, then you will be only working as a developer. You will not be given a role of basically the system administrator. So Correct. role-based access control restricts you doing both the roles. आप अगर खाली एडमिनिस्ट्रेटर का रोल करते हो तो खाली एडमिनिस्ट्रेटर वाली ही एक्टिविटी आपको अलाउ की जाएगी, बाकी एक्टिविटी यू विल बी नॉट अलाउड टू डू. करेक्ट? ओके, ओवर टू यू. Do you have anything to discuss, Sanjit? I'm done from my end. No, nothing for today. Okay. I'll tell you a very, very interesting story about workflow and ticketing and how manager approvals can be removed or reduced and all of that, which I did for one of my clients. I'll tell you tomorrow. Sure. Yeah, because Sanjit is best in workflow. He's, I think, journey in Fujitsu started with workflow tool. Correct, Sanjit? If I'm not wrong? No. I started with SAP and then I took over Run My Process. RPS. Yeah. Yeah, Run My Process. RPS. Yeah. Okay. Okay, guys. So today's, I think, assignments will be shared by Yunus. In the meantime, sorry, Ashfaq, let me group, come in. Let me just come in before people start dropping off. So, guys, I'm looking at all your assignments. Don't worry, I'm not giving my feedback, but I am looking at all your assignments. Please keep them coming. The reason why I'm not giving feedback is I want to give feedback in a system. So I'm setting up a learning management system. In a day or two, it will be ready. And then you should be able to get all your feedbacks and all of that on the system. Okay? So give me a couple of more days. Thank you. Go ahead. Back to you. So I have shared few YouTube videos for brushing up your understanding around incident problem change. Correct? Just go through that. It's 5 to 10 minutes videos, almost all of them. And again, I think simple examples has been given within that videos. It will help you to understand and brush up your process related knowledge, and that will be very useful when you're moving going ahead on this course. Correct? Moving progressing on this course. So just go through that video. It's 5-minute video. At least once in a day you should have a look at it. If you have any doubts, you can go back, check. Correct? And I will start putting some quiz, okay, coming from next week, from Monday, on those topics. So, and we'll keep that way engaged. We'll see are there any knowledge gaps. Accordingly, we can pick up any topics, and we'll have a session around it. Sanjit, if I'm not wrong, we had a plan to schedule a sessions on Sunday, if I'm not wrong, correct? But that will not be immediately. Correct. Yeah. So during those sessions, we can cover some of those topics along with, we don't want to touch technical areas, but if we'll find some gap, then we'll touch upon those areas only on Sundays. For rest of the days, I think it will be Yunus and you guys, and we'll be intervening wherever we feel that it is very much required. Yeah. Yep. Sanjay. Yeah, I'm done. Let's close. Thank you, everyone. Yeah, let's close then, guys. Bye-bye. Thank you, everyone. Good day. Bye-bye.